Because of external force, the body may be at rest or moving. So the state of the body is changing under the action of external forces. Na, Nitish? The state of the body is changing. हाँ, समझ गए? चलो, कोई बात नहीं. Shall we start? Shall we start? Let us not waste time. Let us not waste time. There is only one request from his voice. Everything clear? And I'm very happy that you people have मतलब कल का क्लास देखने के बाद ये पता चल गया कि even though the examination is approaching, but many students are watching this class. So thank you, my dear students. So please do not waste time. So what I do is, let us not waste time. Let us do it at the best. So I said, as it is a gift from my side to you for lifetime. Chalo, let's start. Are you ready? हाँ, please. Kumar Babu, अभी ये शुरुआत ही है. Wait for some time. I don't know whether I teach well or not. Wait for some time. बाद में देख लेंगे. चलो, no problem at all. Now, characteristics of. इसको निकाल देंगे सर, ये थोड़ा सा रहा है. Last में पूछ लेना मैं. Characteristics of force. Right. Now, dear students, as I said, it is a vector quantity. Correct now? I said characteristics. Characteristics. I said characteristics. It is a vector quantity, so definitely it has a magnitude. And you need to specify the direction. Now, देखो सर, एक सेकंड को. I'll do one thing. Let's take a member. Now, it's a request to all of you. When the class is going on, please do not comment. Please do not comment. Comment only when I ask some question or when you have some doubt. Otherwise, unnecessarily, only when I ask you to comment, then only you comment. Okay, let us take a member. Say it is fixed here. Now, dear students, I have applied a load of, say, is it external or internal? It is external. It is external. So let this be A, let this be B. I have applied a load of, say, 50 Newton. Wonderful, sir. Wonderful. This is case 1. This is case 1. Now, what we do is, my dear students, we'll take case 2. This is point A. Let me erase and let me introduce a load here. Same. Let this be point C. Let this be B. Now, same force. Magnitude is same. That is 50 Newton. Now, you tell me, is the effect of this 50 Newton force, which is in the downward direction, on this member, and the effect of same 50 Newton force in the downward direction, same or different? Yes, it is different. Why, says it may bend something like this, something like this. Yahan pe the effect may be less, which we'll be studying later. So definitely, or if you have not understood this, let me put it in another manner. If you have not understood this, let me put it in a practical way. Let me put it in a practical way. There is a smooth wall and there is a ground. And you have placed a ladder. Yahan pe ek ladder hai. There is a ladder. Okay, no problem at all. Listen, sirs. Now, you are standing here. Now, slowly you are climbing and you are standing here. Dear students, your weight is same. Let us say it is 800 Newton. Chalo, 700 Newton lenge, 70 kilo lenge. 700 Newton. Your weight is same. Is the effect of this same 700 Newton same or different? Definitely it is different, because when you are climbing, there is a possibility that this may slip in this direction. But if it is at point A, it may not slip. Yes or no, sir? It may not slip. Agar ye force, if the point of application of this force is here, it may not slip. As you are moving in the upward direction, at some point, it may start slipping. So it means my force, in both the cases, the magnitude is same. In both the cases, the direction is same. But the point of application of force is different. Yes or no, sirs? Yes or no, sirs? Yes or no? Dear students, yes or no? Again, I'll put it in this way. Again, I'll put it in this way. If you have not understood, let us take a spherical ball. It is kept and there is a support here. Exactly. What I do is, my dear students, I'll apply a force here to lift, and I'll apply a force here to lift. In which case it can move from this support easily. In second case, yes or no, sir? In second case, this one, you can easily move this ball, spherical ball. It means, dear students, I know it is a vector quantity. I know it has magnitude and direction, but force is characterized by the point of application also. Dear students, आप ध्यान से सुनना. अगर point of application mention नहीं करता है, so there is a problem.
So therefore, my what I say, my force is characterized by three things. What are those? What are those the three things? And the third one is point of application. Point of application. Till now, is it clear, my dear students? My dear students, till now, is it clear? Bolo sirs. Now, let's proceed to what are the effects of force. If you are applying a force, what could be the effects? I'm not saying when I apply force, these things are witnessed pakka. ये नहीं बोल रहा हूं. What are the probabilities? मतलब क्या effect हो सकता है? क्या effect हो सकता है? सुनो सर. Effects of force. The effect of force is, for example, look at carefully. Now, my dear students, there is an object here. There is an object. Now I apply a force like this. This is passing through. Take a second, please. No tension, sirs. Now I apply force. Very good. I've applied a force. Okay, no problem at all. No problem at all. Very good. This is case one. Now, there is a door. And it is hinged here. Look at this. Now I देखो. Sir, everything is mechanics, sir. Everything. सर आप तो थर्मल पढ़ाते फिर आज तो आपने अपना कलर ही चेंज कर दे. एवरीथिंग इज मैकेनिक्स बोल रहा है. आप तो थर्मो के टीचर है. My dear students, थर्मो तो पढ़ाता हूं. If you want to analyze forces on the blade, turbine blade, steam power plant, turbine blade, mechanics. Constant pressure, piston cylinder arrangement. How much force is acting on the piston? Mechanics. Oh God, sir, आप तो अपना रंग ही चेंज कर दिया. आजकल मैकेनिक्स में जी रहा है. बिल्कुल जी रहा हूं. I eat mechanics, I sleep mechanics, I drink mechanics. तो have you ever seen, my dear students? कभी आप देखे सर? Dear students, कभी देखे इसका हैंडल यहां होने का कभी देखे सर? Have you ever seen the handle of the door somewhere here? Or have you seen the handle somewhere here? ये hinge है. So you have always seen the hinge far away from this. क्या है ये सब देखेंगे सर? We'll see. Zero level से जाएंगे सर. Now, dear students, let me apply force. Very good. Wonderful, sirs. Wonderful. Now, so carefully. So whenever a force is applied, and take the third case, dear students, take the third case. Wait a second, please. अब देखो, एक फोर्स में ऐसा अप्लाई किया, एक फोर्स में ऐसा अप्लाई किया. No matter what, all these are forces. You tell me, आप ही को बताना है सर. Whenever a force is applied, क्या effect हो सकता है? क्या effect हो सकता है? In this case, it is translation. Can I say, when I am pulling it, it moves along the force. So therefore, the first effect is translation. And the second is, anyone about this, it tries to rotate. About this, if there is a hinge here, if I apply it, so if I apply a force like this door here, so it tries to rotate. The second effect is rotation. It may be pure translation, it may be pure rotation, it may be translation and rotation. General motion, we have seen in theory of motions, general motion. It may be moving and it may be rotating also. General motion. So therefore, the third one is, let me write it as translation T, let me write it as rotation T. So there may be translation plus rotation. So whenever a force is applied, three possibilities are there. Three effects can be witnessed. Maybe pure rotation, maybe pure translation, maybe rotation and translation. Till now, is it clear, my dear students? Till now, is it clear? And it's a humble request to all of you. So let us, देखो सर, तनुज ने मुझे बहुत बार बोला, सर आप एक वीडियो बनाओ. देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है सर. आप एक वीडियो बनाओ कि मैकेनिक्स शुरू हो रहा है, कल से शुरू हो रहा है, एक वीडियो बनाओ और अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देना. इतना फोर्स किया मुझे, फिर भी मैं रेयरली किया. आप लोग जानते हैं कि हमारा कोई हल्ला गिल्ला मतलब ये नहीं रहता है. यू आस्क तनुज, कितने बार मुझे फोर्स किया? तो एक सिग्नल दे देंगे सर हमारे देश को, हम बहुत डिसिप्लिन है. तो अगर क्लास 8:30 बजे शुरू होता है तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू कम बाय 8:30. एक सिग्नल दे देंगे सर. जिंदगी में अगर डिसिप्लिन नहीं है तो प्रॉब्लम होगा सर. प्लीज, it's a request to all of you. Now your teacher is not expecting anything. Your teacher is expecting discipline from you, genuine hard work from you, and no comments about others. Please. तो ये आप कर लेना. तो we have seen effects of क्या है. जैसे फोर्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको क्या करना है? डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, स्टॉप टॉकिंग अबाउट अदर्स. Characteristics of Kulkarni sir's classes. Characteristics of force. Translation, rotation, translation, rotation. Characteristics of Kulkarni sir's class.
डिसिप्लिन, परफेक्टली ऑन टाइम, हार्ड वर्क, नॉट टू टॉक अबाउट अदर्स। खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं सर। लेट्स प्रोसीड। पोजीशन वेक्टर। वेरी गुड। पोजीशन वेक्टर प्लीज। आई सेड नो कमेंट्स। पोजीशन वेक्टर, ध्यान से सुनो सर, बहुत केयरफुली सुनो। अब थोड़ा थोड़ा हम जा रहे हैं सर, एंड यू विल अंडरस्टैंड द ब्यूटी व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। देयर इज अ, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट है सर, particle. Till now we have not defined what particle is. Let's see what is a particle, what is a body. Wonderful sir, answer sir. Wonderful sir, wonderful sir. Particle and body, please, please. केस 3 क्या केस, अच्छा केस 3 बॉडी ऐसा ट्रांसलेट भी होगा। देखो इट्स, इधर देखो, इधर देखो, तमिल इधर देखो, इधर देखो, T plus R का मतलब ट्रांसलेशन रोटेशन। इधर देखना, रोटेशन का मतलब ध्यान से सुनो, एक फिक्स्ड पॉइंट कभी भी वो फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट घूमेगा। रोटेशन मींस अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इट रोटेट्स, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इट रोटेट्स। अब देखो क्या ये कहीं जा रहा है सर? अरे ये तो जा रहा है, इट इज ट्रांसलेटिंग। ओरिजिनली इट वाज हियर, आफ्टर सम टाइम द बॉडी इज हियर, मे बी हियर, एंड ओरिजिनली इट इज हियर, बॉडी तो यहीं पे है। क्या बॉडी जा रहा है सर? तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे घूम रहा है सर, घूम रहा है। बट ये क्या हो रहा है सर? इधर देखो, इधर देखो, अब देखो, इधर इधर देखो, प्लीज लुक एट हियर, इधर देखना, देखो इधर, दिस इज द इनिशियल पोजीशन आफ्टर सम टाइम बिकॉज़ ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आफ्टर सम टाइम ये क्या हुआ? क्या ऐसा ही गया सर? ऐसा नहीं गया। अगर ऐसा ही जाता तो ट्रांसलेशन, अगर इसी पॉइंट पे वो घूम रहा है, इट इज रोटेशन। अब ये फोर्स के कारण डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोर्सेस आर अप्लाइड। इधर देखो, ये थोड़ी देर के बाद इधर आया, मतलब ये घूम भी रहा है, मूव भी हो रहा है। इट इज ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, एंड सच अ मोशन वी कॉल इट एज जनरल मोशन। जनरल मोशन, इज इट क्लियर? तनुष, इज इट क्लियर? अरे वो क्वेश्चन पूछता है, भाग जाता है ना। देखो, अरे समझ में आ गया? थोड़ी देर के बाद ये पता नहीं, इट मे बी समवेयर हियर, समथिंग लाइक दिस, ऐसा हो सकता है। मतलब ये घूम भी रहा है और देखो ये, और ट्रांसलेट भी हो रहा है। चलो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ पार्टिकल। क्या कोई बता सकते सर, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल? हाँ, प्रोजेक्ट इधर देखो, बॉडी को ऐसा फेंक दिए तो ऐसा भी जा रहा है और वो पोजीशन भी चेंज कर रहा है। एग्जांपल, ना देखो, व्हाट इज अ पार्टिकल? माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। बताया था क्या कल बताया था क्या? डिड आई टेल व्हाट इज अ पार्टिकल? नो ना। अब देखो, व्हाट इज अ पार्टिकल? माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन इट इज एन आइडियलाइजेशन। Please, my dear students, you may be asking a question, sir, if I do not idealize, if I do not make such assumptions, what will happen? Listen sir, what will happen? For example, अगर हम वो assumptions नहीं करते हैं तो I cannot develop a mathematical model. If I cannot develop a mathematical model, I cannot construct equations. अगर मैं assume नहीं करता हूं तो मैं mathematical model develop नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता हूं तो equations construct नहीं कर सकता। I cannot solve. And it may so happen sometimes if I do not make such idealizations अगर नहीं करूंगा, it may take a lot of time to solve, and even it may be impossible to solve. That's why we are making some assumptions. Let's see what is particle, my dear students. If the mass of the body, if the entire mass of the body is concentrated in some small space, we treat it as a particle. For example, इधर देखना, इधर ध्यान से सुनो सर, अगर एक बॉडी है, इसका पूरा मास इसी प्लेस पे कॉन्सेंट्रेट हुआ, we can treat it as a particle, मतलब पॉइंट मास की तरह। क्या ये पॉसिबल है सर? Definitely it will occupy some volume, definitely, but ऐसा क्यों करते हैं सर? Just to simplify the analysis, but again it depends sir. For example, I'm looking moon from earth. ध्यान से सुनो सर, अगर आप मून के पास जा रहे हैं तो मून will be such a big body, but if I'm looking moon from earth, how is it looking like? मुझे बताओ सर, आपको ब्यूटीफुल एनालिसिस दूंगा, प्रैक्टिकल अप्रोच, how moon is looking from earth. अर्थ से मून एक छोटा इतना दिख रहा है, something like a small particle, complete mass is concentrated at one point. So from earth I can treat moon as a particle, point mass. Is it clear, my dear students? So इससे क्या फायदा होगा आप आगे देखते जाइए। अब एक बात बताओ सर, सुनो केयरफुली। There is a point, बहुत केयरफुली सुनो रे, बहुत केयरफुली सुनो। There is a point mass and there is a body. Look at, there is a point mass, there is a body, and मुझे पता है सर, थोड़ी देर के बाद इधर देखो, फोर्स यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सो इसमें मैटर करता है, इसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का कोई मैटर करता है सर? आप बताइए, एक ही तो पॉइंट है, तो कहां पे अप्लाई करना है? उसी पॉइंट पे। दैट्स व्हाई फॉर अ पॉइंट मास दो कैरेक्टरिस्टिक्स आर एनफ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स and what is the direction of force? That's it. So for a body, three things are required: point of application, magnitude and direction. For a point mass में क्या है सर? आपको नहीं समझ में आ रहा है? अरे मास तो पॉइंट है रे, पॉइंट में रोटेशन, अरे यूजलेस फेलोस, देयर इज अ स्मॉल पार्टिकल, कोई रोटेशन दिखता है उसको, कुछ भी कर लो वो वहीं पे रहेगा। बट इफ यू सी दिस, डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी देर के बाद ये जो पोजीशन है, इट मे कम लाइक दिस,
थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम, लिसन सर, आफ्टर सम टाइम ये जो पॉइंटेड है इट मे कम हियर, ऐसा ऐसा। सो डेफिनेटली रोटेशन दिख रहा है, यहाँ पे रोटेशन दिखाओ, इस पॉइंट पे रोटेशन दिखाओ, इस पॉइंट पे रोटेशन दिखाओ मुझे, कुछ भी कर लो वो वहीं पे रहेगा। सो देयरफॉर रोटेशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, रोटेशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है किस पे, पार्टिकल पे। सो पार्टिकल मींस वन पॉइंट, सो वन पॉइंट मींस इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ पार्टिकल इट हैज टू पास थ्रू दैट पॉइंट। सो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का कोई मीनिंग ही नहीं है, कहां पे, पार्टिकल पे। नहीं आया, बोलो सर क्या स्टूडेंट्स है रे बाबा, इनको मैं कहां लेके जाऊं रे बाबा, कहां लेके जाऊं। सो पार्टिकल का मतलब छोटा सा है, वो ऐसा घूमे तो वैसा ही दिखेगा ना। तू यहां पे है रे, चंदा मामा यहां पे है, चंदा मामा, और वो ऐसा घूम रहा है, आपको कैसा दिखेगा, वैसा ही दिखेगा। बट तू यहां पे है, अब तू यहां पे है, चंदा मामा यहां पे है। अगर मान लो चंदा मामा का दोस्त है यहाँ पे, थोड़ी देर के बाद अगर रोटेट कर रहा है तो ये दोस्त यहां आएगा, तो रोटेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर, इट इज यू आर विजुअलाइजिंग। मैं क्या करूं सर आपको, Is it clear dear? बताता हूं सर, wonderful. So why we take particle is so that all forces at one point, मैं बताता हूं सर, आइए, it is easy to analyze, लेकिन please look at my dear students, particle को आप अपनी तरफ से मत लेना, it all depends with what reference you are selecting। अगर आप मून के पास देखें, मून को पार्टिकल लेंगे, नहीं लेंगे सर। अब देखो सर, बॉडी है, सुनो केयरफुली, बॉडी है, सुनो, समझ, is it clear sir, what is a particle? If the entire mass of the body is concentrated at one point and if the size is negligible, so we treat it as a particle. If the size is negligible, we treat it as a particle. क्या इसको पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे सर? अब बताओ, क्या इसको पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे? No, it is a body. So it consists of system of particles. इधर देखो, so many particles, so many point masses, so many particles, and इसको बोलते हैं system of particles. For example, इधर देखो सर, planetary system, Mercury, Venus, Earth, Mars, देखो सोलर सिस्टम में जब आप देखेंगे सब समथिंग लाइक पॉइंट मास की तरह मूव हो रहा है, वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो एक अगर है तो पार्टिकल, अगर वैसे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, इफ यू हैव ओनली वन पार्टिकल, इट इज अ पार्टिकल। इफ यू हैव सो मेनी पार्टिकल्स, इफ यू आर एनालाइजिंग सो मेनी पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। फॉर यस, एग्जैक्टली दर्पण, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, यू आर एनालाइजिंग एवरीथिंग। प्रोटॉन एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, न्यूट्रॉन एक पार्टिकल है, सो तीनों मिला के क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। वाह, समझ में आया सर? Whenever I use the word particle, it is a point mass. Whenever I use the word particle, it is a point mass. So is there any significance of rotation in particle? No. Body rotation. Shall we proceed, sir? So one student asked me, sir, one student asked me, sir, what is the fun in taking particle? Are yaar, if the size of the body is very small, एक तो हट गया, क्या हट गया, रोटेशन का कॉन्सेप्ट ही हट गया। Will it not be simple? अरे बॉडी छोटा है रे बाबा, इधर देखो, मैं बताता हूं आपको, इधर देखो, एक सेकंड, मैं आपको विजुअलाइज करवाऊंगा, मैं आपको विजुअलाइज करवाऊंगा। इधर देखो, ये है छोटा बड़ी, इधर देखो, और ये है, इधर देखना, मेरे तरफ देखना, इधर देखो, मेरे तरफ देखना, एक सेकंड। यस डियर स्टूडेंट्स, एक देखो, ये देखो, यहां पे भी एक पॉइंट मार्क, इधर देखो, प्लीज लुक एट, ये भी घूम रहा है, तो इसका जो रोटेशन है आपको दिख रहा है, दिस हैज मूव्ड टू दिस, एंड व्हाट अबाउट दिस, बोलो। सो इफ इट इज सो स्मॉल, रोटेशन का कोई इफेक्ट ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है। That's why it is easy to analyze. जितना सिंपल हो सका. So whenever it is possible to simplify the subject, simplify करने की कोशिश करना. Otherwise, you'll end up in complications. Is it clear, dear? मस्त क्लियर हो। लूसीफर बाबू को जिंदाबाद। अगर कुछ अच्छा लगा है तो मस्त बोल देना, encourage करना मुझे। चलो leave it. यहाँ तक हो गया सर. Now, अब आएंगे. Very good. Now we'll come to position vector. सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। Let us take a body or a particle. देखो, whenever particle है तो particle बताऊंगा, body है तो body बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा तो you can take body or particle, कोई दिक्कत नहीं। There is a body or a particle, whatever it may be. Originally it was here. Originally कहां पे था? A. Can you tell me what is A? My dear students, what is A? It is the original position of one particle or body under consideration. देखो, हमारा दोस्त लूसीफर यहां पे था, सुनो केयरफुली, मेरा दोस्त लूसीफर यहां पे था। उसके बाद सुबह उठा, चाय पीने गया, चाय पी के आ रहा था, उसका दोस्त मिला, दोस्त के पास आ गया, दोस्त के पास आके फिर गया फोन रिचार्ज करने के लिए, फोन रिचार्ज करके आने के बाद देखो अगेन दूसरे फ्रेंड के पास गया, दूसरे फ्रेंड के पास जाने के बाद फिर सुनो फिर अब कॉलेज गया, नाश्ता करके कॉलेज गया, यहाँ पे है, फिलहाल यहाँ पे है वो। ग्रेट। हाउ मच डिस्टेंस ही हैज ट्रैवल्ड, देखो डिस्टेंस बोल रहा हूं, आई यूज द वर्ड डिस्टेंस। देखो दिस
दिस दिस, या फिर ऐसे ले लेंगे थोड़ा इजी के लिए। मैं क्या कर रहा हूं, केयरफुली केयरफुली केयरफुली, इधर से इधर आके इधर आ गया, थोड़ा प्लेस नहीं है, थोड़ा माफी चाहता हूं सर, माफी चाहता हूं सर, इधर आ गया। हाउ मच डिस्टेंस ही हैज कवर्ड, जितना भी पाथ कवर किया डिस्टेंस, क्या कोई डायरेक्शन बताया कितना डिस्टेंस मूव कर दिया? 700 मीटर, 700 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस माय फ्रेंड लूसीफर हैज कवर्ड? 700 मीटर, 700 मीटर, बस खत्म। पोजीशन वेक्टर, क्या बोला था? पोजीशन वेक्टर, वेरी गुड। थोड़ा ये माइंड में रख लेना, इसको थोड़ा माइंड में रख लेना, इसको क्या रख लेना? माइंड में रख लेना। अभी आपको ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दूंगा, फिक्स्ड वेक्टर, स्लाइडिंग वेक्टर, मूविंग वेक्टर, सभी बताऊंगा सर। क्योंकि ये समझ में आ गया तो मूवमेंट, कपल, पोजीशन वेक्टर, यू विल एंजॉय आराम से। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाना, मुझे पता है लूसीफर बाबू ने ये सब ट्रैवल किया, थोड़ी देर के लिए लूसीफर बाबू को बाजू में रख देना। लेट अस सेलेक्ट वन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम 2 डायमेंशनल ही स्टडी करते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्शनल कोसाइन ये सब 3D का भी बताऊंगा, डोंट वरी। क्योंकि सिविल सर्विसेज में है, जो सिविल सर्विसेज में है वो पहले बता के करूंगा कि आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, लेट दिस बी एक्स एक्सिस, लेट दिस बी वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। हर एक चीज में कहां से मेजर कर रहा हूं सर, हर एक चीज में कहां से मेजर कर रहा हूं? आई यूजलेस फेलोज, हर एक चीज मैं ओरिजिन से मेजर कर रहा हूं। तो कहां से जाना चाहिए सर? इफ यू आर मेजरिंग फ्रॉम ओरिजिन, आई हैव टू मूव फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट। तो डायरेक्शन क्या हुआ? फिक्स हुआ नहीं हुआ? अगर मेरा पॉइंट यहां पे है, सुनो सर, अगर ये सब आपको लगेगा ये पागल इतना स्ट्रेस क्यों कर रहा है, व्हेन वी स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस ऑन मूवमेंट विद वेक्टर, तब पता चलेगा कि ये पागल क्यों ऐसा किया। पोजीशन वेक्टर तो 1 सेकंड की बात है, लेकिन ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि व्हेन आई स्टार्ट टीचिंग यू मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, तब पता चलेगा सर। तब बोलेंगे सर थैंक यू सर, अब बोलेंगे ये पागल ऐसे ही पढ़ाएगा, कोई नहीं, आई डोंट केयर। लेट देयर बी अ पॉइंट और पार्टिकल और बॉडी एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। सुनो सर, ध्यान से सुनो, look at I can say that this is my XA. What does it mean? From the origin, it is at a distance of, horizontal distance of XA. Great. Similarly, any problems, sir? Any problems, sir? Any problems, sir? Any problem? What does it mean? It is at a distance of 2 meter, 3 meter. मान लो XA is 2, YA is 3. इसका पोजीशन किसके रेस्पेक्ट से देखना है? इसके रेस्पेक्ट से देखना है। तो ओरिजिन से कहां है वो? ओरिजिन से, यस, देयर इज अ फिक्स्ड डायरेक्शन। ओरिजिन से वो यहां है। लेट मी रिपीट सर, फ्रॉम द ओरिजिन, व्हेनेवर आई से पोजीशन वेक्टर, पोजीशन फिक्स हो गया। किसके रेस्पेक्ट से फिक्स हो गया? ओरिजिन के रेस्पेक्ट से। इधर देखो, फ्रॉम द ओरिजिन, देखो फ्रॉम द ओरिजिन ड्रॉ करना, दिस वी कॉल इट एज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। This we call it as position vector of A. Useless fellows, ऐसा मत करना, origin से गया, origin से गया। इधर देखो, everything is measured from where? Everything is measured from origin. Origin से measure, देखो, we are measuring from origin. ये position vector होगा। वेक्टर लिखना है। अब पहली बात आ गई यूनिट वेक्टर, शायद आपको पता है। यूनिट वेक्टर ये बताता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है 1, द पर्पस ऑफ यूनिट वेक्टर इज डायरेक्शन। इट्स समथिंग लाइक दिस, देखो, इट्स समथिंग लाइक दिस। प्रवीण आमरे, प्रवीण शर्मा, प्रवीण कुमार, प्रवीण कुलकर्णी, कुछ पता नहीं चला प्रवीण बोलने से। क्या चाहिए सर? क्या चाहिए? प्रवीण कुलकर्णी। समथिंग इज रिक्वायर्ड। ये सर नो सर, ये सर नो। तो इसीलिए अब हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। द पर्पस ऑफ यूनिट वेक्टर इज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन। तो वी हैव 3 principal directions, x, y, z. तो in x direction I take unit vector as I, it is vector। तो I वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे, समझ में आ रहा है सर? क्या आप लिखेंगे? What does I mean? For example, ध्यान से सुनो सर। For example, मैं क्लियरली बताऊंगा। For example, इधर देखो सर, इधर देखो। मान लो इसका लेंथ 10 है। ये कौन सी डायरेक्शन है सर? It is in what direction? It is in x direction. Let us say it is in x direction. 10 है। What does I mean सर? I का मतलब क्या है? I का मतलब है ये है I, ये I से 10 में डिवाइड करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दिस इज माय I, दिस इज माय I, इट इज शोइंग इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं -I शो करता हूं तो ये डायरेक्शन में होगा। तो आप बोलेंगे फिर इसको, ये तो ऑरिजिन से मेजर कर रहे हैं, तो ऑरिजिन से लेट अस से माय पॉइंट, ऑरिजिन से, दिस ऑरिजिन से माय पॉइंट इज हियर। वेयर इज दैट पॉइंट? इज इट इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन? इट इज इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो इसको मैं लिखूंगा 10I।
What is I showing? It is in the positive x direction. What is 10 showing? Magnitude. What magnitude? So ये distance 10 है और ये x direction में. ये प्रवीण, ये कुलकर्णी, ये प्रवीण, ये कुलकर्णी, ये प्रवीण, ये कुलकर्णी. तो एक magnitude show कर रहा है, एक direction show कर रहा है. Likewise, we have to show in all directions. In x it is I, in y it is j, in z it is k. तो देखो समझ में आया सर यहाँ तक? I think there is no problem with this. I think there is no problem with this. Is it okay, sir? Is it okay? आप देखना सर. Now you tell me. I want to write the position vector of R. Sorry, A का position vector लिखना है. तो क्या लिखेंगे सर? It is here. तो XA किस XA में है सर ये? Is it on the right or left of the origin? Is it on the right or left of the सुनो. Yes, XAI plus ये XA. ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? इस पॉइंट का y डिस्टेंस कितना है? YA. ये हो गया पोजीशन वेक्टर. Whenever I say vector, it has a direction. So position vector. अब मुझे बताओ क्या ये फिक्स है या कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं सर. सेम लेंथ का, ध्यान से सुनो सर, सेम लेंथ का वेक्टर, इधर देखो सर, सेम लेंथ का वेक्टर, वेट, सेम लेंथ का वेक्टर, आई एम राइटिंग, क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर का मतलब कहां से मेजर कर रहा है. डेफिनेटली आप देखना ये डिस्टेंस, डियर स्टूडेंट्स, डेफिनेटली ये डिस्टेंस y वाला और ये x वाला सेम नहीं है, तो इसका सेम नहीं है. Hope you have understood, my dear students. Hope you have understood. So whenever I say position vector, it is a fixed vector. It is measured from a particular point. Position vector is fixed vector. मतलब एक particular point से आप measure करें. So इसका position जब बात कर रहा है, तो I should talk from this position only. So it is a fixed vector. Hope you have understood. My dear students, क्या ये बात सभी को समझ में है? अभी कॉन्सेप्ट आएगा फ्री वेक्टर, स्लाइडिंग वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं क्या बोल रहा हूं सर? ये भी समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं सर? अगर ये भी समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं सर? मैं व्हाट आई एम सेइंग इज विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑरिजिन, एवरीथिंग इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? हर एक किसके रिस्पेक्ट से मेजर कर रहा है? ऑरिजिन से. अगर मेरा पॉइंट यहां पे है, ये तो फिक्स हुआ ना. सो व्हेन दिस इज द पॉइंट फ्रॉम द ऑरिजिन, इज दिस फिक्स्ड? इज दिस वेक्टर फिक्स्ड? यस. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर? सेम वेक्टर को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं सर? बिल्कुल नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि ये शो कर रहा है मेरा पोजीशन, ये शो कर रहा है. सुनो, इफ आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस इज माय पोजीशन. इज दिस पोजीशन सेम? इज दिस पोजीशन सेम? बिल्कुल नहीं है सर. So whenever I say position vector, its position is fixed with respect to origin. So that's why I call this as a fixed vector. We have seen in, नहीं आया सर समझ में? आया या नहीं आया? Please बताइए, is it clear sir? Position vector, अरे my dear students, when I say you are at home, your position is fixed. Can I say that you are at your home and मैं आपको बॉम्बे में दिखाऊं? कैसा दिखा सकता हूं सर? Whenever I say position vector, it is fixed one. Now observe here. अब आएंगे, आया या नहीं रे बाबा? मैं क्या बोला सर? यस, कभी भी याद रखना, व्हेन आई से पोजीशन वेक्टर, ऑरिजिन से लेते हैं. इज इट ओके? अब देखो, अब ध्यान से सुनो. लूसीफर हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम ए. आई डोंट नो कैसे ट्रैवल किया, वो कहां ट्रैवल किया, मुझे कोई उसका लेना देना नहीं है. एंड फाइनली यहां आ गया. How much distance Lucifer has traveled? At complete path he has traveled. If you are calculating all this, it is 856 meter he has traveled. Just why 856? अरे कुछ बात बता रहा हूं सर, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, सिंपल, कुछ भी ले लो आप. No. Where was Lucifer initially? He was here. Where is Lucifer finally? He is here. Initial, final. Can anyone tell what is this? It is the path followed by Lucifer, and I'm calculating the total path. That total path is distance. Wonderful. Now, एक काम करते हैं सर. Just focus on Lucifer's initial and final positions. ध्यान से सुनो सर. Can I write? अब देखो सर, इसका everything is measured with respect to origin. कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है सर, कुछ इंपॉर्टेंट. डिस्टेंस समझ में आया सर? डिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज द पाथ कवर्ड. ग्रेट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, कल बताया था सर. बिफोर आई प्रोसीड, दिस इज वन वेक्टर. से दिस वेक्टर इज ए. एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स कल देखे थे. assume this to be another vector. What is the resultant of both? This is vector A and this is vector B. What is the resultant of both? Closing side in opposite direction. वो तो पता है आपको. Closing side in opposite direction. Closing. Look at like this. These are the two sides taken in order. Order का मतलब इसके बाद यही order में जाना है. Close करो. Dear students, इसको close करो. My dear students, you close it like this, like this. You close it. But that closing side should be in the opposite direction.
इसको क्या लिखेंगे सर? इसको क्या लिखेंगे? दिस इज ए प्लस बी। वेक्टर ए को हम क्या ऐड किए? बी ऐड किए। तो कल बताया था whether it is a plus b or b plus a, it is same। कल तो बताया था। If you want, you can do it. Is it okay? Is it okay, sir? Is it okay? मतलब closing side should be in the opposite direction, like this, like this. Is it correct, sir? क्या ये सही है? It is the addition of this and this vector। यहां तक सबको समझ में आया? Great students। अब देखो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। Just focus, sir। Can you tell me what is RA? अब RA का मतलब इट्स पोजीशन इज फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। फ्रॉम द ओरिजिन उसका पोजीशन यहां पे है। तो क्या लिखूंगा सर मैं? XA प्लस YA। इज इट करेक्ट? व्हाट डज इट मीन? इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? इसका ये डिस्टेंस है XA और ये डिस्टेंस है YA। This is YA and this is XA। For example, if this is 2 and this is 5, if this distance is 2, this distance is 5, what does it mean? It is 2I plus 5J। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? है सर? है सर? बिल्कुल नहीं है। अब देखो सर, आराम से। Now I will take the final position। अब बताइए, what is this? Anyone इसको क्या बोलेंगे? Can I write this as RA? Can I write this as RB? What is RB, sir? What is RB, sir? XB प्लस कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है। सम स्टूडेंट्स आर थिंकिंग सच अ सिंपल थिंग, व्हाई इज ही वेस्टिंग टाइम? मुझे पता है सर, आप लोगों का विचार मुझे पता है सर। डोंट वरी, आई नो सर। देखो यहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम है सर? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वेरी गुड। अब बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कैन आई टेल? मीडिया स्टूडेंट्स, आई टेल यू। This distance is anyone? What is this x distance? What is this x distance? XB। And what is this distance? YB। Wonderful। No problem at all। अब एक काम करेंगे सर। Now I'll do one thing। Listen। Just listen to me। Let me write this as RAB। Wait। डायरेक्शन देखो सर, ये तो यहां पे है लेकिन मैं यहां शो नहीं कर सकता हूं, तो इसीलिए मैं यहां लिख रहा हूं। माफी चाहता हूं सर आपसे, माफी चाहता हूं सर। अरे गया देखो, Is it okay? Now tell me। अब देखो सर, now देखो, प्लीज लिसन माय स्टूडेंट्स। देखो वेक्टर, जब रिलेटिव की बात नहीं कर रहा हूं ललित, सुनो ललित, मैं बात कर रहा हूं वेक्टर की बात कर रहा हूं। ए से बी, समझ गया ना? ए से बी। अगर वेक्टर ए बी लिख रहा हूं तो क्या कैसा लिखेंगे सर? ललित, ए से बी लिख रहा हूं, टेल हेड। ए बी वेक्टर लिख रहा हूं, ए टेल हेड। समझ में आ गया सर? इज इट ओके? राइट। अब मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, कॉमन सेंस देखना एक बार। व्हाट इज दिस? आर ए। व्हाट इज दिस? आर ए बी। राइट। ये दोनों का रिजल्टेंट क्या है बोलो? एनीवन इन क्लास, ये दोनों का रिजल्टेंट देखो प्लीज। चुप। ये दोनों का रिजल्टेंट क्या है? लाइक दिस। रिजल्टेंट शुड बी लाइक दिस। इट शुड बी क्लोजिंग बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। इज इट करेक्ट? ऐसा क्लोजिंग तो ऐसा हो रहा है बट अपोजिट। ये तो आर बी हो गया। तो कैन आई राइट माय डियर स्टूडेंट्स, कैन आई राइट, इधर देखो, कैन आई राइट आर ए? प्लीज नोट डाउन दैट इट इज नॉट algebraic addition, it is vector addition। समझ में आ रहा है सर सभी को? It is not algebraic addition, it is vector addition। Can I write RA plus RAB is equal to RB? चलो एक बात बताता हूं सर, सुनो, कंफ्यूज मत होना सर। इज इट ओके सर? या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, अगर आपको कोई दिक्कत है, देखो, अगर आपको कोई दिक्कत है तो सुनो केयरफुली। आई विल राइट दिस एज वेक्टर OA, कोई बात, वेक्टर AB, कोई बात, बोलो रे, A to B डायरेक्शन देखो, O से B, वेक्टर O से B। तो क्या मैं लिख सकता हूं? इट इज समथिंग लाइक, देखो एक बार, A plus B is equal to C, OA plus AB। Yes or no? This triangle of addition, इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये आ रहा है। Is it OB सर? बोलो सर, is it OB? अब मुझे बताओ what is AB? It is OB minus OA। OB minus OA। Is it clear? So therefore AB is equal to OB। What is OB? It is OB? It is the position vector of B। What is OA? It is the position vector A। अरे समझ में आ रहे? So therefore AB अगर आपको चाहिए तो anyone in the class, what is or this is XBI, कुछ ब्यूटी आ रहा है सर, प्लस YBJ।
minus RA. What is RA? XAI plus YAJ. किसी को कोई प्रॉब्लम है सर? It's a request to all of you. Have you followed this or not? Can we write this as AB as, देखो II XB minus XAI, yes or no? XB minus XA, I का I plus YB by A, YB minus YAJ. इसमें समझाने की क्या है सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा। और कैसे समझाओ सर? इतना क्यों पागल हो रहे सर? क्या आपको कितना क्लियरली बता रहा है? ये वेक्टर और ये वेक्टर का एडिशन, अरे इसीलिए मैं पहले ट्रायंगल लॉ बता दिया। व्हाट इज द एडिशन ऑफ A प्लस B? एक लास्ट का नहीं समझ नहीं है। लास्ट का क्या रे बाबा? देखो सर, प्लीज लुक एट, ये क्या हो गया सर? कैन आई से दिस एज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए? क्या ये वेक्टर को मैं आर बोल सकता हूं या नहीं सर? और ये वेक्टर क्या है सर? ऑरिजिन से, कभी भी याद रखना, ऑरिजिन से पोजीशन वेक्टर, ऑरिजिन से क्या मैं इसको आर भी लिख सकता हूं सर? अब ये भी नहीं है सर। अब मुझे बताओ सर, नाउ यू टेल मी, डू यू नो द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए? आई नो द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए व्हिच इज एक्स ए प्लस। आपको पोजीशन ही नहीं समझ में आ रहा सर। मैं बोल रहा हूं एक पॉइंट यहां पे है, इसका एक्स डिस्टेंस इज 2, y distance is 3, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 2i plus 3j। यही तो बोल रहा हूं, द पोजीशन वेक्टर ऑफ a इज दिस। और एक यहां पे है, लेट अस से d, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है सर? लेट अस से दिस इज 5 एंड दिस इज 1, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा सर? 5i plus j। हाँ देखो सर, ये पूछ रहा है, प्रणीत पूछ रहा है सर ये रिजल्टेंट है, तो आप ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्या हमेशा आपको देखो, देयर आर टू फोर्सेस। सुनो प्रणीत ने पूछा, जब रिजल्टेंट ही पता है तो दूसरा वेक्टर क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? एक रिजल्टेंट है और एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर पता नहीं, तो क्या करिए आप? एक रिजल्टेंट पता है, एक रिजल्टेंट पता है और दूसरा वेक्टर पता है। वन वेक्टर, देयर आर टू वेक्टर्स, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज वन थिंग, रिजल्टेंट है, एक वेक्टर पता है, दूसरा वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ, दूसरा वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? फिर देखो समझ में आया ना? तो ये मत सोचना कि हमेशा रिजल्टेंट पता है तो दुनिया पता है। देखो, नाउ द क्वेश्चन इज, प्रणीत आई एम आस्किंग, इधर देखो प्रणीत, इधर देखो, on a body a force is applied like this, then another force is applied like this, the resultant of these two forces I want along this line, this is 5 Newton and this is also given, this is unknown। क्या हमेशा आपको रिजल्टेंट पता है तो दुनिया पता है? ये समझ रहे आप? अरे नहीं आ रहा रे ये लोगों को। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? अब देखो सर, ये सब भूल जाओ सर, आप ये सब भूल जाओ सर। कितना आई डोंट अंडरस्टैंड सच अ सिंपल थिंग, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। आई नो द पोजीशन ऑफ दिस, I know the position of this, I know the position of this। Position means from origin, position means from origin। मुझे इस पॉइंट का origin से पता है xa plus y, इस पॉइंट का origin से पता है। Do I know the position vector of a and b? A point a and point b, position of a, position of b। I said position of a, position of b, I know, ये तो पता है सर। अरे कितना सिंपल है रे। देखो एक सेकंड रुको, this is one vector, this is another vector, ये दोनों का रिजल्टेंट, this is taken in this order and this is taken in this order। Now you tell me what is the resultant of these two? Like this, if two sides are continuous, then the third will be in the opposite direction। क्या ये दोनों का रिजल्टेंट ये होगा या नहीं होगा सर? होगा या नहीं होगा सर? अब यहां पे क्या प्रॉब्लम है सर? That's why I wrote OA this vector plus this vector can be write addition of vector। ये सिंपल एडिशन नहीं, algebraic addition नहीं, वेक्टर एडिशन। कैन आई राइट दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर? अब ये भी नहीं है तो मैं क्या करूं सर? द वन हु हैज आस्क्ड द क्वेश्चन, हैव यू फॉलोड? यही तो किया। अब मुझे ये पता है, आई नो OA इज पोजीशन वेक्टर ऑफ A, AB आई डू नॉट नो, OB इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B। व्हाट इज AB वेक्टर? सो व्हाट इज AB वेक्टर? इट इज RB minus RA। वही तो बोल रहा था मैं। अब ये भी नहीं आया तो मैं क्या करूं सर? इवन इफ यू डू नॉट नो दिस, इफ आई वांट AB, व्हाट इज RB? XBI plus YBJ minus RA। what is RA? XAI plus YAJ। is it okay? So if you want AB, I का I, don't subtract XB minus YA, useless fellows। so in the same direction, क्या बोला था मैं? Vectors in the same direction can be algebraically added। अगर एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा है, can I directly add? It is all as already they are in the same direction, you can add or subtract if they are in the opposite direction। इसलिए अब देखो AB is equal to XBI minus है यहाँ पे XB XI XA, it is in the x direction plus
YB minus YA, it is in the J direction. बस ये भी आ गया. अब ये भी नहीं आया तो मैं क्या करूं सर? Have you followed? इतना भी नहीं आया तो मैं क्या करूं सर? आपको इतना भी नहीं. Is it clear, sir? Who asked this? नहीं आया सर समझ में. Who asked this? Why are you wasting time, sir? We have wasted 6 to 7 minutes on this simple thing. Now you may be asking one thing. सर इससे क्या मतलब है सर? अब आप बताइए. पार्टिकल कहां से कहां डिस्प्लेस हुआ. यहां था, यहां गया, इतना डिस्प्लेस हुआ, इतना डिस्प्लेस हुआ, इतना डिस्प्लेस हुआ. This is the distance and this is the displacement. It has not displaced from B to A. It got displaced from A to B. There is a direction of displacement. It has got displaced from this to this. So displacement is a vector quantity and that is given by A का position vector, B का position vector. अगर आपको displacement चाहिए, it is final position minus initial position, final minus initial, ये minus A, तो यही होगा displacement vector. So even though the particle has traveled this much distance, which has no direction, which has direction, एक बार इधर गया, एक बार इधर गया, एक बार. So even though the distance is scalar quantity, displacement is a vector quantity. It got displaced from this to this. So displacement अगर आपको चाहिए, तो आप इसका position vector, इसका position vector, from A to B it got displaced. Vector B minus vector A. So position vector of this minus position vector of A. It will give me that is. समझ में आया सर? अब ललित समझ में आया सर? ललित आपको समझ में आया? सर आप बोल रहे थे, ललित क्या बोल रहे थे? B to A ना सर? Yes, it is B minus A ही बोला मैं, B minus A, लेकिन वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो when I talk right in terms of vector, it will be from tail to head, A B वेक्टर होगा, ये B नहीं होगा, A B वेक्टर होगा. प्लीज बताइए, आप भी क्लियर? ये क्या है सर? दिस इज, समझ में आया सर? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डिफरेंस समझ में आया? दिस इज द डिस्टेंस व्हिच हैज नो डायरेक्शन, कहीं भी जाए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है. No. Please look at my dear students. Please look at. I'll give you the beauty here. अब आप समझेंगे सर ये पागल इतना क्यों कर रहा है? ये पागल इतना क्यों कर रहा है? अब आपको समझ में आएगा सर. अब देखो. Is it okay sir? Is the position vector a fixed vector or movable? मतलब एक particular point का position fix है या change है origin के respect में? I said whenever I say position vector it is with respect to origin. Origin के respect से position fix है या change है? अगर मैं point A की बात कर रहा हूं, if I'm talking about point A with respect to origin, ये तो fix है. With respect to origin, ये तो fix है. This is a fixed vector. What about this? Is it from origin? No. कुछ सुनो सर. अब थोड़ा देखो सर. इसीलिए हम आपको बताएंगे. सर. इधर देखना. Can distance be equal to displacement? If it follows a straight line. If it follows a straight line. जब मैं kinematics पढ़ाऊंगा आपको, देखो सर, जब kinematics पढ़ाऊंगा तब एक वर्ड यूज करूंगा. A particle is moving along a straight line. सर. Every word is important sir. एक सिंपल वर्ड से प्रॉब्लम में मैं 1 आवर लिया था. देखो इधर देखो. सुनो. Now there is a particle here. I know its position vector. सुनो. After some time, the particle is here. यहां से ऐसे जा रहा है. See please, this is not vector. मैं उसका पाथ ट्रेस कर रहा हूं. ये पाथ ऐसा मूव कर रहा है. What is distance and displacement? Anyone in the class? What is distance and displacement? Displacement is joint initial and final position. तो ये हो गया आपका displacement. अरे देखो, joint initial final. Yes, ये initial final. ये हो गया आपका. समझ में आ रहा सर? And what is it following? Same path. The path and the displacement. The particle got displaced from this to this along this line. Distance is also same. So whenever a particle is moving along a straight line, the distance and displacement are same. अगर particle ऐसा मूव हो रहा है, तो distance और displacement अलग है. These words you will understand its importance when I go to NLM. Kinematics जब पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा कि सर इतना क्यों स्ट्रेस किए थे. वो बोलता है the distance traveled by a particle is moving along a straight line. So carefully, particle is moving in a straight line. The distance traveled is so and so. लेकिन हमें displacement चाहिए वहां पे. Distance is equal to displacement. Be careful sir. जब वो straight path में मूव होता है तो दोनों बराबर हो जाएंगे. अगर straight path में नहीं मूव होता है तो दोनों अलग हो जाएंगे. Curved path में मूव होता है. Is it okay sir? मैं आगे बढ़ सकता हूं सर? Shall I proceed, sir? Every word is important. यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सर. Wonderful, sir. इधर देखो. Now have a look at this. वाह, have a look at this. मजा करेंगे सर. इधर देखना. Now observe here. एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा सर. Today you are going to love it. Point number 1. Yes, my dear राहत मेरी. सुनो. See, I have also learned certain things, how to manage the class.
कुछ मैं छोड़ दिया, पहले जब बहुत स्पेसिफिक रहता था, बाद में बताऊंगा क्लास के बाद, थोड़ी चीजें मैं छोड़ दिया, नजरअंदाज केयर भी नहीं कर रहा हूं, आपको बाद में बताऊंगा क्या छोड़ दिया, क्या केयर नहीं कर रहा हूं। सुनो सर, ए बी वेक्टर जो निकल के आया वो अब पोजीशन वेक्टर है? बिल्कुल नहीं है सर। गुप्ता जी, पोजीशन वेक्टर का मतलब हमेशा ऑरिजिन से। गुप्ता जी, पोजीशन वेक्टर हमेशा ऑरिजिन से। अब देखो मजा, देखो अब देखो, अरे मजा देखो, प्लीज सुनिए सर, अब देखो मजा देखो, प्लीज, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट सर, थोड़ा मेरे तरफ ध्यान देना सर, यू लव इट, यू प्लीज प्लीज प्लीज। पॉइंट ये है, क्या क्वेश्चन है जी आपका? अरे रे क्या क्वेश्चन है जी? सर व्हेन पार्टिकल इज मूविंग इन अ कर्व पर डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। हाँ हाँ बिल्कुल, ओके राइट। हाँ, डिस्टेंस तो फिजिकली वो कितना ट्रैवल कर रहा है। देखो एक बात बताता हूं, इधर देखो, इधर देखो, यस ये सब काइनेमेटिक्स में आएंगे, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो दीक्षा जी, देखो पार्टिकल इधर से 70 मीटर गया इधर से और इधर आ गया, इट वॉज घर से, देखो घर से गया, फ्रेंड के घर गया, मैकेनिक्स का किताब लेके वापस आ गया, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल वही है, फाइनल वही है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? जीरो, और आई कैन कॉल इट एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, यही आएगा। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड? What is the distance covered? It's not 0, it is 140. He traveled 70, so 140. Is it okay? चल आगे बढ़े, आगे बढ़े। सुनो सर, सुनो प्लीज, मान लो इसका वेक्टर है, प्लीज लिसन केयरफुली, लेट दिस बी, इसका पोजीशन है, इसको 2 ले लेंगे, इसको 4 ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम है सर? मतलब ये वाला 2 है, दिस इज आवर 2 मीटर और 2 यूनिट्स एंड दिस इज आवर 4 मीटर। कैन यू राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यस, फर्स्ट एक्स लिखते हैं, कन्वेंशन है, एक्स लिखते हैं, उसके बाद वाई, दैट इज 2i। कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है सर, कुछ इंपॉर्टेंट आ रहा है, लेकिन अभी नहीं समझेंगे सर, आप अभी नहीं समझेंगे, ये कॉन्सेप्ट कहां यूज होता है देख लेंगे। +4j, धीरे धीरे मैं आपको वेक्टर को यूज करने का, वेक्टर का आदत दे रहा हूं मैं आपको। आई विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन मोमेंट ऑफ फोर्स, वेक्टर अप्रोच, नॉर्मल एनालिटिकल अप्रोच, आपको जो पसंद है वो कर लेंगे। एंड समटाइम्स वेक्टर अप्रोच इज सेकंड्स में हो जाएगा सर। जब वेरिग्नॉन्स प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा तो सम पीपल में बी कैलकुलेटिंग बाय यूजिंग x डायरेक्शन y डायरेक्शन, रिजॉल्व करके करेंगे, हम वेक्टर अप्रोच करेंगे, 1 सेकंड में हमारा आंसर आ जाएगा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आई विल गिव यू ऑल वेपन्स, व्हिच वेपन इज टू बी यूज्ड वेयर, दैट आल्सो आई टीच, बट इन एग्जामिनेशन यू हैव टू यूज इट। सेंस का मतलब डायरेक्शन ही है ना सर, सेंस का मतलब डायरेक्शन ही है ना सर। सर सेंस का मतलब क्या है? आउटवर्ड सेंस और इनवर्ड सेंस, पॉइंट से बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है, इधर देखना। इज इट ओके सर? Yes, wait. Man, you'll get the answer. Dear man, you get the answer. Man, I'll give you a hint. तो आप बोलेंगे सर, आप बोले सर you'll get the answer, सर you get the answer, आप मतलब पोस्टपोन कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं एक हिंट दूंगा। सुनो मैंक, यहाँ पे कैसे गए थे सर? कैसे गए थे सर? क्या एक पर्टिकुलर पॉजिटिव में गए थे? नहीं, ऊपर जाके नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, समथिंग लाइक सेंसेस। ध्यान से सुनो। Today you earn this much, tomorrow you lost, again you earn, again you lost, again you earn, again you lost. If you want to see, what will you see? नेट यहाँ पे क्या है, नेट यहाँ पे क्या है, दोनों का फर्क देखेंगे या पूरा ले लेंगे? इसलिए मैं बोला एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। If you are going in particular direction, everything will be positive. That's why displacement and distances are same. But एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है तो नलिफाई हो जा रहा है वो, गॉट इट ना? तो इसलिए इसका फील बताओ सर, लेकिन आपको क्यों पता है कि सर ऐसा पोस्टपोन करते जा रहे हैं, मतलब है कुछ सब्सटेंस है। अब देखो सर, शायद यहां तक सभी को क्लियर है सर? डियर स्टूडेंट्स, स्टिल नॉट इज क्लियर? अब देखो सर, ब्यूटी देखो, ब्यूटी देखो, बहुत केयरफुली देखना। इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। नाउ क्या हुआ सर? डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ? सुनो, इधर आ गया, प्लीज लिसन, इधर आ गया। लेट अस से इसको मैं कितना ले लूं रे, कितना ले लेंगे रे? इसको हम 8 ले लें, चलो लूसीफर बोल रहा है 10 बोल रहा है, चलो उसका ही मानेंगे, नहीं तो मार डालेगा वो 10। ये कितना ले लेंगे रे? 8 ले लेंगे, चलो दीक्षा जी भी मारेंगे, चलो कोई नहीं, हैप्पी, ओके, नो प्रॉब्लम। तो यू टेल मी व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी? बी कितना है रे? x का कितना हुआ? 10i, x का 10i प्लस ये कितना है? 6j। एनी प्रॉब्लम सर? नो प्रॉब्लम। अब आप बताइए AB का वेक्टर बताइए, AB वेक्टर बताइए, एनीवन इन द क्लास AB वेक्टर। क्या यूजलेस स्टूडेंट्स है रे? इधर देखो।
दिस इज आर ए, दिस इज आर बी, देखो देखो, एंड दिस इज यूर सो प्लीज मैं थोड़ा एरो इधर डाल रहा हूं तो कंफ्यूज मत होना सर। नाउ एबी, नाउ यू टेल मी व्हाट इज एबी। अभी तो बताया सर, अभी तो बताया सर, अभी तो बताया व्हाट इज एबी। आर बी ए टू बी, ए टू बी का मतलब बी माइनस ए टू बी का मतलब बी माइनस ए। इज इट ओके? इज इट ओके? आर बी माइनस आर ए। आर बी क्या है? 10 माइनस 2। देखो इधर 10 माइनस नहीं आ रहा सर, आई से आई निकाल देना, आई से आई निकाल देना। 10 माइनस 2 एक्स बी माइनस एक्स ए, एक्स बी माइनस एक्स ए। 10 माइनस 2 8 प्लस एक्स बी माइनस वाई बी, सॉरी वाई बी माइनस वाई ए। 6 माइनस 4 इज 2i, 2j। वेरी गुड सर। नाउ वन स्टूडेंट से, ये तो हमें पता था, इससे क्या आपको मतलब क्या करना चाह रहे हैं सर? वेरी गुड सर। मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्या मैं ऐसे वेक्टर्स को पैदा कर सकता हूं या नहीं? ऐसे वेक्टर्स को और पैदा कर सकता हूं या नहीं? क्या नहीं जनरेट सच वेक्टर्स? कैसे सर? कैसे सर? कैसे सर? कैसे सर? अब मैं बताता हूं। देयर इज सम अदर पोजीशन आर ए डैश। एक सेकंड सुनो 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 सुनो। सम अदर पोजीशन वेक्टर आर ए डैश, ध्यान से सुनो सुनो सर, केयरफुली सुनो, केयरफुली सुनो। लेट दिस बी 6i प्लस 8j। ये a डैश का पोजीशन है, एक अनदर पार्टिकल है a डैश, उसका पोजीशन है। यू डू, इज इट क्लियर सर? देयर इज सम अदर पॉइंट, देयर इज सम अदर पार्टिकल, उसका पोजीशन। इसका मतलब क्या? a डैश कहां पे? x6 y8 means x6 y8 somewhere here, somewhere here, somewhere here it is a dash. Now let us take rb dash, let us take rb dash, rb dash बहुत केयरफुली देखना सर। 14i plus 10j। any problem sir? 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 मतलब कॉन्सेप्चुअली देखना सर। वेर इज आर ए जे, थोड़ा इसको हटाएंगे सर, थोड़ा इसको हटाएंगे। हाँ, वेर इज आर ए डैश? एक्स इज 6, समवेयर इट इज 6। देखो ये 10 है तो 6, y इज 8, ए 6 है तो ये 8 है। क्या मैं इसको a डैश बोल सकता हूं सर? देखो x 6 है, y 8 है, x 6 है, y 8। अब r b डैश, x कितना है? 14, 10 मतलब 14 समवेयर हियर। 10 10 10 10 10, ये 8 है तो समवेयर इट इज b डैश। मतलब एक और एक पार्टिकल ऐसा हुआ, नहीं आ रहा सर समझ में नहीं आ रहा। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई डू इज, नाउ ऑब्जर्व हियर, व्हाट आई डू इज, कैन आई कॉल दिस एज आर ए डैश, कैन आई कॉल दिस एज आर बी डैश? बोलो रे, अब ये बताओ सर, एनीवन इन द क्लास व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस सर? ए डैश बी डैश। एनीवन इन द क्लास व्हाट इज ए डैश बी डैश? एनीवन इन द क्लास व्हाट इज ए डैश बी डैश? 14 minus this is 8i, 10 minus 6 is 2j। is it not the same? मतलब इसको मैं फ्रीली स्लाइड कर सकता। देखो इट इज अ फ्री वेक्टर, इट इज अ फ्री वेक्टर, लेकिन पोजीशन वेक्टर ए डैश का पोजीशन फिक्स है, बी डैश का फिक्स है, ए का फिक्स है, बी का है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इज अ फ्री वेक्टर। तो सेम वेक्टर आपको मिलेगा क्योंकि वो डिफरेंस है। इट इज समथिंग लाइक दिस माय डियर स्टूडेंट्स, इधर देखना, इट इज समथिंग लाइक दिस। देखो देखो इधर से इधर गया ये, मान लो ये डिस्टेंस सम 10 है, और सेम 10 क्या यहां से यहां नहीं मिलेगा सर? सेम 10 यहां से यहां नहीं मिलेगा सर, सेम वेक्टर, लेकिन इसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ये फिक्स है, इसका पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ये फिक्स है। सो पोजीशन वेक्टर इज अ फिक्स्ड वेक्टर, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ फ्री वेक्टर। नहीं आया सर समझ में? प्लीज बताइए, हैव यू फॉलोड सर? सर ये कुछ अच्छा चीज देने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं आ रहा सर। आई एम रियली सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी सर, आपको पूरा देने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन प्लीज बताइए, आर बी क्लियर? ये कॉन्सेप्ट कहां पे आएंगे? कपल इज अ फ्री वेक्टर, मोमेंट इज अ फिक्स्ड वेक्टर, वहां यूज होगा सर, ये वहां यूज होगा। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, वेक्टर का आदत कर रहा हूं सर आपको। The logic is very simple. What is the logic? This is the difference between this and this. I said differences are, what is 10 minus 6? 4. What is 14 minus 10? 4. What is 24 minus 24? What is 28 minus 24? I said differences हजारों लाएंगे, same I can bring. लेकिन 28 तो एक ही होगा ना, 24 तो एक ही होगा ना, it means from origin position तो एक ही होगा ना। Please tell me, is it clear? If this is clear, we can. Yes, ये दोनों पैरेलल है सर, ये दोनों पैरेलल है सर, ये दोनों पैरेलल है सर, लेकिन मेरे पास प्लेस नहीं था, मैं ऐसे गया। यस दे आर पैरेलल, सेम, फ्री फ्री। हैव यू अंडरस्टूड? फ्री का मतलब कहीं पे भी ले सकते। अरे यार सुनो केयरफुली, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। मैं आपको और एक बात बताता हूं सर, सुनो सर, सुनो सर, सुनो सर, देखो एक बार, लुक एट लुक एट लुक एट, आई यूज, देयर इज अ वेक्टर 8i plus 2j। इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट वेक्टर। हाँ, इट इज नॉट अ पोजीशन वेक्टर। जब वो पोजीशन बोलता है तो फिक्स है, सिंपली ये बोल रहा है। इसका मतलब क्या है? से वेक्टर ए बी, ऐसे वेक्टर मैं लाखों प्रोड्यूस करूंगा, ऐसे लाखों प्रोड्यूस करूंगा। यस, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, इनफाइनाइट। कैसे सर? ए डैश, अभी तो बताया, देखो देखो,
ए और बी का है वो, ए और बी का सिमिलरली सेम आई कैन प्रोड्यूस. So if you say yes, then I proceed, sir. अगर आप yes बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा सर. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है सर? समस्या? I think there is no problem. I think there is no problem. If you permit me, I'll proceed, sir. Crystal clear? Thank you, sir. Thank you. So hope you have understood. Position vector फिक्स होता है, लेकिन displacement vector फ्री है वो. वाग बोलता है didn't understand. What have you not understood, Mr. Wag? हाँ Mr. Wag, what have you not understood? Sorry बोलता है वो. Before you post something, please think करो. किसी को कुछ बात बोल रहे तो सोच के बोलो. क्लियर सर? क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं सर. यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है. यस नीतीश, वही तो बोल रहा हूं ना. ऐसा वेक्टर, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज आपको क्या पॉइंट समझना पड़ेगा. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स. सो दैट डिफरेंस आई कैन प्रोड्यूस द सेम डिफरेंस. अभी तो बोला 24 minus 20, 28 minus 24, 32 minus 28. नहीं आया समझ में? सो लाइकवाइज यू टेल मी, you are not understanding the point. What is this AB? What is this displacement vector? It is the difference in the position vectors. अरे displacement नहीं आ रहा समझ. इधर देखो, what is AB? AB is displacement vector. This displacement vector is the difference in position vectors. Likewise 28 minus 24, 32 minus 28, 48 minus 44. तो ऐसे डिफरेंसेस हम सेम वैल्यू को नहीं प्रोड्यूस कर सकते सर. If we take 16 in place of ये तो देखो, मैं see, you are not understanding my essence. Such vectors are free vectors, means I can have these type of vectors, many vectors बोला मैं. वो बोलने का मकसद है, if I take this in place of this, it will not be same. What I tried to say, show is 8i plus 2j vectors can be infinite vectors. Is it okay, sir? Because it is difference. But this is a fixed vector. Is it clear? ये बोल रहा है. मैं what I am trying to say is you are not understanding. I can have the same vector, the difference between two vectors I can get. I may get, I may not get, but I said there is a possibility. Is it clear, sir? Allu, I don't understand. What is your problem? Allu, you are not like Allu Arjun. You are Gullu. Allu Arjun is so sharp. When we sit and discuss Allu Arjun and myself, he is so sharp. And you are Gullu. Now, shall we proceed? No, let's proceed, sir. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. Very good. Very good. देखो, force is a sliding vector. What do we mean by sliding vector? इधर देखो. Freely I can slide. इधर देखो. गुप्ता कौन पूछे ये? कहाँ गए? हाँ इधर देखो. गुप्ता जी इधर देखो. गुप्ता जी, yesterday we saw Gupta uncle, इधर देखो. If I apply here, what is happening, sir? What is the effect? It is a rigid body. What is the effect? If I apply here, that's why you can slide anywhere along the line of action. That's why force is a sliding vector. शायद समझ में आएगा. I can slide anywhere along the line of action. It is a sliding vector. You cannot shift anywhere. It's not free to go anywhere. Along the line of action, you can slide. So force is a sliding vector. किस लॉजिक से स्लाइडिंग वेक्टर है? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी. नहीं है ऐसा समझ में. आया या नहीं आया रे? ठोको ताली. कितना ब्यूटीफुली दे रहा है आपका टीचर. ये कितना अच्छा दे रहा है, फिर भी कुछ नहीं आता. Is it clear? So along the line of action it is going. So it is a sliding vector. समझ में आया सर? अब देखो. Now we are entering the main part of chapter 1. सर अभी तक क्या किया सर? पूजा की क्या? अगर ये पूजा नहीं करता तो आगे का कुछ समझ में नहीं आता आपको. मतलब फील के साथ चाहिए. तो if you want with feel, even if you have not understood what I taught earlier, there will not be any problem. But there is one point known as feel. Life is dry. Life is मजेदार. Which one do you like? मजेदार लाइफ. ड्राई तो चलते रहता है. तो अब लाइफ ड्राई नहीं है सर, मजेदार है. अब देखते हैं. Have you understood, sir? ये कॉन्सेप्ट कब आएगा सर? सर सुनो. Fixed vector, free vector. When I teach you couple and moment, what is the difference between couple, moment? What is the difference between couple, moment, torsion? सब देखेंगे सर. Now, shall we proceed? There is a difference, sir. There is a difference. Now, yes, feel is very important. You know, अब देखो. System of forces. सर ये क्या पढ़ा है सर? Very good. Observe here. Please, sir. अब ये दिया, दूसरा आप कर लो बेटा. Any more free vectors सब चाहिए आपको? क्या स्टूडेंट्स है? देखो एक बार सुनो. बहुत केयरफुली सुनो. There is one force like this. There is one force like this. There is another force like this.
there is another force like this. When there are so many forces acting on my body or a particle, we call them as system of forces. So many forces. तो आप बोलेंगे सर कैसे एक्ट करेंगे सर? मेरा चेयर है, मैं चेयर पे बैठा हूं, चेयर हैज 4 legs. मेरा वेट आ गया, one leg is taking other leg, समझ में आ गया ना? अलग अलग legs, forces are different, so many forces are acting on my chair. System of forces. सर जी ये बॉटल यहां पे रखे, कैन आई कॉल इट अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस? यस सर, यस सर. क्यों सर? यहां पे तो एक ही है, वेट लग रहा है. ओहो, जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, क्या ये नीचे गिर रहा है सर? इज इट फॉलिंग डाउन? समवन इज गिविंग समथिंग, यहां से रिएक्शन, यहां से वेट. तो दो फोर्सेस है, इट इज सिस्टम ऑफ फोर्सेस. नहीं ऐसा समझ में? अगर हम स्पेस में गए, सुनो केयरफुली, अगर हम स्पेस में गए, वी आर इन स्पेस नाउ. सुनो, वी आर इन स्पेस. हम कहां पे हैं? स्पेस में है. ग्रेविटी रहेगा सर? ग्रेविटी रहेगा सर? ग्रेविटी रहेगा सर? नो. सो देयर इज एन ऑब्जेक्ट. नाउ आई अप्लाई अ फोर्स. Yes, it is subjected to a single force. It is subjected to a single force. समझ में आया सर? समझ में आया सर? Okay. Now, look at my dear students. एक डाउट तो आना चाहिए सर. क्या डाउट आना चाहिए सर? Mechanics deals with rigid bodies and external forces. Agreed. Mechanics deals with rigid bodies and external forces. Agreed, sir? Agreed. जब अभी तो right now I don't know what is a free body diagram. Right now I don't know, honestly. Next topic is say after system of forces, it will be free body diagram only. Now the question is, so when I'm drawing a free body diagram, we are studying engineering mechanics. वहां पे मैं weight भी show करता हूं सर. Now you tell me, is weight external or internal? Is weight external or internal? चलो मैं पोल करूंगा सर. सुनो 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 सुनो, मैं पोल करूंगा सर. A internal, B external. I'm conducting a poll. Is weight external force or internal force? Weight is internal force, external force. Huh? Oh my God. Oh my God. A 42%, B 58%. Fortunately C और D कोई भी नहीं दिए. अच्छा, इतने लोग आ गए. अब देखो सर, कैन यू जस्टिफाई समवन सेड, जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो वेट भी दिखाते हैं. मैकेनिक्स डील्स विद एक्सटर्नल फोर्सेस. तो यहां पे मुझे डाउट आया सर, वेट तो इंटरनल होना चाहिए ना, बट 58% स्टूडेंट्स ने एक्सटर्नल बोला. सेम क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसा बोलो, सेम बॉडी को स्पेस में ले जाओ, सेम बॉडी को धरती से, फ्रॉम अर्थ, यहां से यू टेक टू स्पेस, सेम बॉडी. अगर इंटरनल होता है तो वहां पे भी एक्ट करना चाहिए. इफ इट इज इंटरनल विद इन द बॉडी, अगर बॉडी के अंदर से आ रहा है, सुनो केयरफुली, अगर वो बॉडी के अंदर से आ रहा है तो वहां पे भी एक्ट करना चाहिए, क्योंकि द बॉडी इज सेम. बट व्हेन आई टेक दिस ऑब्जेक्ट टू स्पेस, देयर इज नो वेट. मींस to this object earth is pulling. When earth is pulling, it means object के लिए वो external है. Object gravity के वजह से वो, because of pulling of earth, body तो ये है, this is the body, our earth is pulling it. Is it external? Yes, it is external. तो यहाँ पे एक बहुत dangerous sign दिख रहा है सर. So external forces can be direct contact forces. External forces can be invisible by some influence. Be careful sir. इसीलिए मैं क्या करता हूं ना, when I start drawing free body diagram, पहले मैं वेट को शो करता हूं, क्योंकि वो रहेगा ही, वो तो एक्सटर्नल रहेगा ही. When I start drawing free body diagram, मैं पहले वेट को ही शो करता हूं, because it is external, वो रहना ही है, और अर्थ is pulling it, वो एक्सटर्नल रहेगा ही. So please note down that, please note down that weight is not internal, it is external. अगर internal, had it been internal, go to space and see, if you go to space, you don't find any. If had it been internal, अगर अंदर का है तो यहाँ पे भी अंदर पार्टिकल्स है, वहां पे भी अंदर है, वहां एक्ट नहीं कर रहा, यहाँ कर रहा है. When it is acting here, means someone is pulling it. Who is pulling? My earth. My earth is pulling it. Means it is external. And don't think that external is always direct contact से आएगा. Or useless fellows. So there is an object. सुनो, there is an object kept here. तो यहाँ पे this is in contact. So therefore this will offer reaction. So ये नीचे नहीं गिरा, it is offering reaction. So this is external. Surface contact.
So please do not get confused, my dear students. Yes, exactly, magnetic, exactly. Please understand, my dear students. तो पहले non contact, exactly. Thank you दर्पण जी, thank you दर्पण जी. Is it okay? Is it okay? तो अगर ग्रेविटी ड्रॉ नहीं करेंगे, रेट ड्रॉ नहीं करेंगे तो हंसेंगे लोग. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डील्स विद एक्सटर्नल फोर्सेस. देखो एक बार कॉमन सेंस देखो, एक बार कॉमन सेंस देखो. प्लीज रे कॉमन सेंस देखो. सब्जेक्ट को फील करो, माय डियर स्टूडेंट्स. देखो एक बार, सुनो केयरफुली. रिएक्शन नहीं बोला सर मैं इसको, बॉडी फोर्स बोला सर, सरफेस फोर्स नहीं बोला सर. इट इज अ बॉडी फोर्स. ग्रेविटी फोर्स इज अ बॉडी फोर्स व्हिच एक्ट्स थ्रू आउट द वॉल्यूम. समझ में आया सर नितिश? I never said it is a contact force. I never said it is a surface force. I said it is a body force which acts throughout the volume. Is it okay? अब देखो. हाँ, जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तब बताएंगे गुप्ता जी. इधर देखो सर. What is mechanics? Dear students, what is mechanics? Under the action of external force, we are studying the state of the body. Under the action of external force, we are studying the state of the body. Look at. There is an object. तो एक सेकंड छोटा फील देके छोड़ दूंगा सर. The same object. इस ऑब्जेक्ट पे our earth will it pull it towards its center? Yes. इस ऑब्जेक्ट पे अर्थ तो पुल करेगा ही. On this object, earth will pull it. Yes or no? You are not understanding. I will write this as W. Can I write this as external force? Can I write this as external force? क्या स्टूडेंट्स है रे बाबा, क्या स्टूडेंट्स है? Yes. Is the body falling? I kept it on the ground. मैं इसको ग्राउंड पे रखा. Is it falling? Is it falling? Yes बोलता है. Is it falling? No. Means someone is resisting. Someone is opposing it. Who is opposing? Who is opposing? Where there is a contact. Where there is a contact. Where there is a contact. Here there is a contact. अब ध्यान से सुनो. Please listen, my dear students. So on this body there is a reaction. Yes or no? On this body this is the ground reaction. Yes or no? करो. ये सारे फोर्सेस लेके, देयर आर इनफाइनाइट फोर्सेस लेके करो एनालाइज. जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे. तो व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस. सो ये सारे फोर्सेस को एक फोर्स में कन्वर्ट करो. यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट. दैट इज द ब्यूटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस. ऑल फोर्सेस आई विल कन्वर्ट इनटू अ सिंगल फोर्स. नहीं करेंगे सर. दर्पण में मार डालूंगा. अभी डब्ल्यू मत लिखना. डब्ल्यू अगर लिखेंगे तो मार डालूंगा मैं. मेरे से घातक डेंजर कोई नहीं है सर. ये सारों का रिजल्टेंट लिखूंगा. ये सारों का रिजल्टेंट पूरे फोर्सेस को एक सिंगल फोर्स बनाऊंगा. कैसे? पूरों को रोहित शर्मा बनाऊंगा. देखो सिराज, बुमराह, कौन है, ईशान किशन, सबको मैं रोहित शर्मा बनाऊंगा. ये देखो अब रोहित शर्मा आ गए. एंड रोहित शर्मा का आर से ही स्टार्ट होता है. इट इज द रिएक्शन. इज टू के सर. अब आप बताइए सर, इस बॉडी के लिए Is it external or internal? Are useless fellows? इस ऑब्जेक्ट को, ये जो सरफेस है ना, वो सरफेस बाहर का एक्सर्ट कर रहा है. This is external. Mechanics deals with external forces. External. कभी मैं अंदर के फोर्सेस नहीं दिखाया सर. वेरी गुड मयंक. आ गया? थोड़ी देर के बाद देखेंगे कोलिनियर, कोप्लेनर. अब आएगा मजा. राहत तू तो रुला रहे ना रे. ओके, लेट्स फॉरगेट दिस. चलो, शैल वी प्रोसीड. अब स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑफ फोर्सेस. आपके लिए मैं क्या किया पता है सर? वो होता है सर दिलचस्पी. मैं बेंगलुरु एयरपोर्ट में ट्रैवल कर रहा था. सडनली कुछ देखा बेंगलुरु एयरपोर्ट में. मैं सोचा आपको मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूं. तो देखो ये होता है सर आदमी का इंटरेस्ट किसी पे. कैसे इंटरेस्ट होता है रे. और ये भी पढ़ाऊंगा. कुछ लिया देखो. इसे क्या पढ़ाऊंगा रे? अरे यार व्हील को उठा रहा है. कपिल. एक सेकंड प्लीज. मैं कुछ देखा. एक सेकंड प्लीज. मैं क्या लिया? फोटो लिया ना. सब ये. एक सेकंड प्लीज. कॉन्करेंट नॉन कोप्लेनर का कैसे, ये बैंगलोर में लिया था. इसका बैंगलोर में लिया था. सब बताऊंगा. सुनो प्लीज. अच्छा, काइट फ्लाई करने का मैकेनिज्म सारे बताऊंगा. आप चुपचाप बैठ जाओ. शैल वी प्रोसीड. नहीं, क्योंकि ना मुझे सिंपली आई डोंट वांट टू टीच यू कोप्लेनर, कॉन्करेंट, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर. नहीं,
आई वांट टू टीच यू विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। यही था मेरा मकसद। तो सिंपली डेफिनेशन से मजा नहीं आता सर। आई वांट टू टीच विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। यस, सबका प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मेरे पास है, इसलिए पढ़ रहे सर आप। चलो नाउ लेट्स प्रोसीड सर। यस एग्जैक्टली। सब डॉक्टर बन जाओ प्लीज। अब प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, नो कमेंट्स प्लीज। अब प्लीज सब्जेक्ट ना जाना। am I wasting your time? No, na. System of forces, ध्यान से सुनो। कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, कुछ आइडिया है सर? Whenever I use the word system of forces, that means it means there are multiple forces. There are multiple forces. Okay. If all forces are acting in the same plane, the examples dunga sir, don't worry. First we'll see, then we'll see practical examples of all. If all forces act in the same plane, we call same. कोप्लेनर मतलब सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में है, कैसे है हम बताएंगे। When all forces are in same plane, all forces are not in same plane. क्लियर सर जी? बोलो सर। आपको मैं लैमिस थ्योरम, वैरिग्नॉस थ्योरम बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा सर, क्योंकि जहां जहां लूप होल्स है वहां हम कैच करेंगे, पूरे गैप्स फिल अप करेंगे। चलो कोई बात नहीं। अगेन दिस इज क्लासिफाइड इनटू, सुनो केयरफुली, कोप्लेनर फोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू पैरेलल, सेकंड कोलिनियर, थर्ड कॉन्करेंट, हर एक का मीनिंग बताऊंगा, एंड non-concurrent and non-parallel. Yes. First let us see this, then we'll see this. पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद ये देखेंगे सर। ओके, सुनो केयरफुली, बहुत केयरफुली देखो सर। Now the problem is all are in the same plane. एक प्लेन की बात कर रहे हैं तो कितने डायमेंशंस आएंगे सर? इस प्लेन में कितने डायमेंशंस आएंगे? x, y. अगर ये आउट ऑफ प्लेन आएगा या इन द प्लेन जाएगा तो z will also come. But we are talking in the plane. It means it is neither out of the plane nor into the plane. So that means there are only two dimensions. For example, look at. It can be x, it can be y, or it can be like this also. Like, मतलब, it is a two-dimensional case. Non-coplanar. इसका मतलब क्या है? एक फोर्स देखो, इधर देखो, एक फोर्स ऐसा है, एक फोर्स ऐसा है। What are these forces? What are these forces? 2D or 3D? क्या स्टूडेंट्स है रे बाबा? ये कौन सा है रे? ये 2D है रे, ये 2D है रे। और अब बताओ, now you tell me, there is one more force like this. इधर बाहर आया देखो, ये कुछ एंगल पे ऐसा आ रहा है। अब ये 3D है सर। So non-coplanar means they are not in the same. All forces are not in the same plane. They may be out of the plane. So this is 3D. ये हमारा सिविल सर्विसेज में है, ये गेट और ईएससी में है, लेकिन हमें ये भी करना है सर, हम करेंगे। डरो मत सर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे सर। समझ में आया सर? Is it okay? Is it okay? Right. Now, देखो सर, देखो, please listen carefully, आराम से, टेंशन मत लेना। इसको थोड़ा भूल जाओ सर। For the time being you forget this, भूल गए? थोड़ी देर के लिए, dear students, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ। भूल गए ना? Right. Now, एक प्रॉब्लम है सर। अब टू डायमेंशनल कैसा ले लेंगे? एक ऑब्जेक्ट है, इधर देखो, एक ऑब्जेक्ट है, ये तो प्लेन से बाहर आ रहा है बिकॉज ऑफ इट्स थिकनेस प्लेन से बाहर आ रहा है। लेकिन whenever the third dimension is very very small, उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे सर। whenever the third dimension is very small, टू डायमेंशनल में अप्रोक्सीमेट करेंगे। समझ में आया सर? एक डिस्क ले लो, यही है, मान लो यही है डिस्क, ले लो ये डिस्क, टू डायमेंशनल ले लेंगे क्योंकि ये जो थिकनेस है ना वो कम है, मान लो ये डिस्क है। समझ गया ना? बोलो सर, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? अब देखो यहाँ पे, अब फोर्स है, या फिर आई कैन आल्सो टेक दिस, इसका थिकनेस इज वेरी स्मॉल, इधर देखो ये थिकनेस वेरी स्मॉल है। अब देखिए सर, ये है, कैन आई कॉल इट एज प्लेनर? ये बॉडी है, ये प्लेनर है, ये विड्थ बहुत कम है। अब मैं इसी को शो कर रहा हूं सर। इज इट ओके सर? नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट? एनीवन इन द क्लास? नाउ व्हाट आर वी डिस्कसिंग? वी आर डिस्कसिंग कोप्लेनर। को का मतलब कोप्लेनर में सेम प्लेन में,
coplanar force system. Coplanar force system. In coplanar force system, how many types we have to discuss? 4. What are those? Anyone? What are those? Parallel, collinear, collinear, concurrent, non-parallel, non-collinear. चलो, non-concurrent. Okay, चलो अब देखो ये सबका मीनिंग क्या बोलता है? पर, कौन, कोलो, नॉन. ये क्या है रे? ये क्या है? अच्छा, ऐसा मत करो सर, मैं डर जाता हूं. मतलब ये कौन सा लैंग्वेज में बात कर रहे हैं? सुनो सर, एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे सर. सुनो केयरफुली. देयर इज अ फोर्स. आप बताइए, how are these forces acting? Anyone in the class? Is it coplanar? Are these okay? Let me write this as F1. Let me write this as F2. Let me write this as F3. बोलो सर, are these coplanar? मेरा हेडिंग ही coplanar है सर. What type of forces are these? Anyone in the class? ये कौन से force? Coplanar है रे बाबा. Coplanar में क्या है? They are parallel. They are parallel. They are parallel. They are parallel. So it is an example of coplanar parallel. सर फील नहीं आया सर. ओके सर, फील नहीं आया सर. ओके चलो एक सेकंड रुको. सर फील नहीं आया सर. ओके ओके सर, फील नहीं आया सर. ओके एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड. है एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड. ये हम लिया, अब जो एग्जांपल दे रहा हूं. हाँ, लेकिन वो कोप्ले सर, ललित वो कोप्लेनार नहीं है सर. ललित बाबू वो कोप्लेनार नहीं है सर. प्लीज थोड़ा रुको, रुको जरा, सबर करो, धक्का मुक्की नहीं करने का. एक सेकंड, अभी दिखा रहा हूं, अभी दिखा रहा हूं. एक, जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट. अरे यहाँ पे क्या है? देखो, मैं नेट ऑन ही नहीं किया और मेल भेज रहा हूं. नेट ऑन ही नहीं किया, मैं मेल भेज रहा हूं. यस यस यस, वाह 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 वाह. यस, सीसॉ का एग्जांपल. वाह वाह, उस्ताद है रे, एक से बढ़कर एक है. अरे नहीं जा रहा रे. यस यस, बीम का भी है. पता नहीं है मेल क्यों नहीं जा रहा. जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज, एक बार देखता हूं. आ गया हलवा वाला आ गया. This I have taken from NPTEL IIT Madras Professor Ramesh from his classes. इधर देखना. अब देखो सर, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका विड्थ जो है, देखो एक बार प्लीज प्लीज डोंट. ये इसका विड्थ है, बहुत नेग्लिजिबल है. चलो आप देखो ना, इसको मैं उठाया. सो आई एम अप्लाइंग अ फोर्स एंड आई एम लिफ्टिंग. आफ्टर सम टाइम, दिख रहा है सर? सब दिख रहा है सर? यस रमेश सर. अरे हाँ रमेश सर, देखो अब देखो केयरफुली देखो. आफ्टर सम टाइम, आराम से, टेंशन नहीं लेने का, धक्का मुक्की नहीं करने का. इफ यू अप्लाई दिस फोर्स आफ्टर सम टाइम, ये ऐसा हो जाएगा. हो गया नहीं? हो गया नहीं? ऐसा हो जाएगा. अब ये जो ये पूरा टाइट हो जाएगा. अब ये पूरा टाइट हो जाएगा. लुक एट केयरफुली, दिस बिकम्स टाइट. जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं सर. दिस बिकम्स टाइट. ये वाला, ये वाला, ये वाला, एंड इट विल बी समथिंग लाइक दिस. अब इसका यहां पे रिएक्शन है, तो ये क्या करेगा? रिएक्शन, इट विल एक्ट लाइक दिस. नहीं ऐसा समझ में? सो फाइनली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, फाइनल पोजीशन आई एम शोइंग यू, फाइनल पोजीशन ऑफ दिस. सर अगर आप प्रैक्टिकली नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल होगा. सो यहां से देयर विल बी अ रिएक्शन. कैसा आ रहा है ये मैं बताऊंगा सर. ये इट गेट्स लिफ्टेड फ्रॉम दिस. व्हेन आई अप्लाई फोर्स, ये लिफ्ट होगा. लिफ्ट होने के बाद ये जो फोर्स है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. यहां का फोर्स ये टाइट होके ये वर्टिकल ऐसा करेगा, और यहां से रिएक्शन ऐसा होगा. व्हाट आर दीस टू फोर्सेस सर? व्हाट आर दीस टू फोर्सेस? दे आर इन द सेम प्लेन एंड पैरेलल. इतना मुश्किल क्यों ले रहे? इतना मुश्किल से क्यों पढ़ा रहे सर आप? आप तो सॉम तो पढ़ाया? यस सर मैं पढ़ाया. जब सॉम में पढ़ाए थे, आप देखो
सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेना, ले लो सर, यहाँ पे एक रिएक्शन है, लिए सर, यहाँ पे एक रिएक्शन है, लिए सर, और यहाँ पे सेंट्रल लोड अप्लाई करना। ये कौन सा सिस्टम है सर? सेम प्लेन, प्लेनार बीम्स दे आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन एंड पैरेलल। एग्जांपल मिल गया नहीं मिल गया सर? प्रैक्टिकली फील आ गया नहीं? फील आ गया नहीं आ गया? बोलो नहीं आया, पर ये पुल कर रहा है, इसको पुल कर रहा है। इज इट ओके? व्हाइट बोर्ड ऑन आयरन लेग्स, हाँ ठीक है। इज इट ओके? इज इट ओके सर? इज इट ओके? ओके वंडरफुल। तो फर्स्ट इज ओवर, पहला इज ओवर। नेक्स्ट कोलिनियर, कोलिनियर इधर देखना, कोलिनियर, लीव इट, ये हो गया सर। नाउ कोलिनियर मींस along the same line, along the same line, same line पे, same line पे, same line पे, same line पे, same line पे। अब देखो देखो, listen. There is a force applied like this. I have applied one more force like this. I have applied one more force like this. सर यहाँ पे कुछ बताने का था मुझे, मूवमेंट के बारे में नहीं बताया सर मैं, क्योंकि there is a reason. So parallel forces में actually I should talk about movement, but I have not talked about movement because I don't know what is moment vector. तो एक बार कल होने के बाद फिर I'll revisit this. I'll revisit. No problem at all. अब आप बताइए सर, are these three forces? Let me take this force as a fun. ये सर हम कहीं पढ़े थे सर, वहां पे तो at that place only सर ने movement तो बताया था. Wait sir, my sequence is different. My sequence is different sir. Okay, Yuvraj, thank you. F2. देखो रमेश सर का जो क्लास डिलीवरी है ना, वो अमेजिंग है, लेकिन हाई लेवल होता है, तो नॉट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। तो उनके क्लासेस मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत ही अच्छे लगे, लेकिन यू हैव टू गिव टाइम, आपको टाइम देना पड़ेगा। क्या कमेंट है ना? हाँ, सिंस द थर्ड डायमेंशंस मत बोलना, वन ऑफ द डायमेंशंस। यहाँ पे क्या ये डायमेंशंस कम है? अच्छा खासा ये, मतलब ये डायमेंशन, वन ऑफ द डायमेंशंस। वंडरफुल। अब देखो, व्हाट आर दीस फोर्सेस? एनीवन? कुछ नहीं बोलते, कमेंट करो रे। यस, यूटीएम की बात कर रहे हैं। यस, दीज आर कोप्लेनार, कोलिनियर। हम तो कोप्लेनार ही, वाह राजवीर ने सही बात बताया सर, लेकिन आगे जाने के बाद बताऊंगा। कोलिनियर इज नॉट पॉसिबल इन 3D। कोलिनियर इज नॉट पॉसिबल इन 3D, बताऊंगा सर। कोलिनियर सबको एक ही लाइन में रहना है, तो वो एक ही प्लेन में रहना है। यस और नो सर? इफ यू वांट ऑल लाइंस along the same line, they have to be in a single plane. That's why collinear forces are not possible in 3D. नहीं आया सर समझ में? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। Which force system is not possible in 3D? Which force system is not possible in 3D? Collinear force system. Whenever it is collinear means along the same line. If it is along the same line, for example, इधर देखना है, नहीं आया सर समझ में? इधर देखो, प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, इधर देखो सर, आप लोग एक सेकंड। हर एक का कैसा होता है देखो, ये होता है इंटरेस्ट। इधर देखो कितना अच्छा दिया, देखो कोलिनियर फोर्सेस, स्पेस फोर्सेस नॉट पॉसिबल। क्या किताब, एक पॉइंट के लिए एक पढ़ा देखो मैं, ये आप रियलाइज नहीं करेंगे सर, एक पॉइंट के लिए एक पढ़ा नहीं रियलाइज करेंगे सर, मेहनत रियलाइज नहीं करेंगे आप, मुझे पता है। ऑलरेडी ये शेप वाला है, मैं अब तो पागल हूं। यस इट इज नेल्सन। अब देखो ये प्लेन में देखो, अब कुछ भी करो आप, यू ब्रिंग ऑल फोर्सेस इन लाइक सेम लाइन। व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू, देखो एक सेकंड रुको, व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे लाना है तो इसी प्लेन में होना है। अगर एक ही लाइन पे लाना है, इसी प्लेन में होना है। अगर एक ही लाइन पे लाना है तो इसी प्लेन में होना है। इफ यू वांट टू ब्रिंग इन द सेम along the same line, तो इसी प्लेन में होना है। तो therefore please understand my dear students, please understand my dear friends, तो collinear forces are possible only in
कोप्लेनार सिस्टम, नॉट इन 3D, क्योंकि एक ही लाइन पे लाना है तो ऑल शुड बी इन द सेम लाइन, दे शुड बी इन सिंगल प्लेन. You cannot have collinear in multiplanes. Have you understood? कर्टन रिंग किस लाइन पे है? कर्टन रिंग, हाँ यस 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 यस, ऊपर और नीचे, हाँ ओके हो गया, समझ में आएगा. Which force system is not possible? Collinear forces in 3 dimensions in space. 3D को हम स्पेस भी बोलते हैं. 3D को क्या बोलते हैं? 3D को स्पेस भी बोलते हैं. नहीं पॉसिबल है. समझ में आया सर? समझ में आया सर? ये हो गया. अब थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला कॉन्करेंट. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंट? कुछ आइडिया है सर? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंट? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्करेंट? सेम पॉइंट ऑफ, ऑल पास थ्रू सेम पॉइंट. इधर देखो, ऑल पास थ्रू सेम पॉइंट. देखो एक सेकंड रुको, ऑल पास थ्रू सेम पॉइंट. प्लीज जस्ट गिव मी 1 minute. All pass through same point. For example, sir, again it is, देखो एक बार, it's something like this. It's something like this. इधर देखो, इधर देखो रे, इधर देखो. एक सेकंड रुको. No, it's like this, my dear students. इधर देखो, मैं आपको यही एग्जांपल दे दूंगा so that you can understand it better. I'll give this example. इधर देखो, practically you can feel. इधर देखो, look at, इधर देखो, इधर देखो रे, दिख रहा है आपको? अरे ये हाथ आ रहा, देखो देखो देखो, प्लीज देखो. All these forces, how many forces are there here? अरे नहीं आया समझ में. All are in the same plane. All these are in the same plane. देखो, all are in the same plane. तू बोल रहा है गलत, गलत, गलत. इसलिए आप ग्रेविटी को भूल जाते हैं. इसलिए आप ग्रेविटी को भूल जाते हैं. अब देखो, if I try to draw this, इधर देखना, same object, its weight is acting. पहले आप वेट पे फोकस करो, पहले आप वेट पे फोकस करो, कर लिए. और ये वाला इधर देखो, is it falling down? Is it falling down? No, someone is supporting. Who is supporting? This and this. इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर, सपोर्टिंग. Is it okay? Now you tell me how many forces are there? F1, F2, F3, and all these forces are in the same plane. इधर देखो, look at my dear students. All these are in the same plane. They are in the same plane. They are in the same plane. नहीं आया, नहीं आया, आया नहीं आया. They are in the same plane. बोलो रे, क्या स्टूडेंट्स है रे? अपना वेस्ट है सर. आपको वेस्ट कैटेगरी में डिवाइड करता हूं मैं. Let me divide you in waste category. कुछ छूमंतर करेंगे. I want to make some magic. मैजिक करेंगे हम. मैजिक करेंगे रे, करेंगे रे, करेंगे. अब देखो, देखो एक बार. Please look at. Can you see? Can you see? Can you see? All are in the same plane. ये देखो, ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, weight इधर है, and all are passing through same point. इस point से weight, tension, they are in the same plane. They are in the same plane. So it is a coplanar concurrent. Coplanar concurrent. Whenever I use the word concurrent, whenever I use the word concurrent, whenever I use the word concurrent, they meet at a point. They meet at a point. Yes. देखो देखो देखो, तनुज क्या बोला? How to find? वाह, ये हुई ना बात. अब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, कोई डाउट नहीं सर. इस पॉइंट से व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स? देखो देखो, ये बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है. लेट अस से दिस इज अल्फा. इस पॉइंट से ये बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, बीटा. वाह तनुज, इस पॉइंट से ये बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है. यस. एनी प्रॉब्लम्स? एनी प्रॉब्लम्स? लैमी को मत लाना. पहले मैं विदाउट लैमी आई विल सॉल्व. उसके बाद विल सी व्हाट आर द टेक्निकल डिफिकल्टीज ऑफ लैमी. सब लोग लैमी के पीछे पड़ते हैं, लेकिन लैमी का भी कुछ रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन है सर. लैमीज थ्योरम जितना आता है उससे ज्यादा लेके छोड़ूंगा लैमी के बारे में. डोंट वरी. लैमी के पीछे पड़ते हैं. इज इट कोप्लेनर? ऑल आर इन द सेम प्लेन. एक काम करो सर, गले में एक भगवान का सिक्का ले लेना, या जो भी है, आपकी गर्लफ्रेंड का मूर्ति बना लेना, और यहाँ पे एक होल, यहाँ पे होल बना के गले में डाल देना, और बोल देना आज हमें सर सिखाए. गले में यहाँ पे वो तो वो क्या बोलते हैं, वो कॉइन का थिकनेस तो बहुत कम है, तो यहाँ आएगा प्लेन, एक ही प्लेन में ऐसा
बोल देना कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस हमारे सर ने सिखाया, बस खत्म। अब नहीं है तो मैं क्या करूं सर? इज इट ओके? अल्लू ने कुछ बोला, लैमी में 180 नहीं होता बट सिंस हो सकता है ना एंगल। यस यस, इसीलिए मैं बोला लैमी को व्हाटएवर यू नो बाजू रखो सर, आपको कुछ आता है तो वो थोड़ा बाजू रखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट ओके? F1 F2 is supporting. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नॉन कोप्ले सॉरी नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट। चलो look at you have seen dear students, अब देखो एक सेकंड रुको। Is it coplanar sir? Is it coplanar? Yes, there is a force like this, 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 there is a force like this। अब बताइए, अब बताइए, अब बताइए ये क्या है? ऑल आर इन द सेम प्लेन, आर दे पैरेलल? फर्स्ट आई राइट, मैं इसको बोलूंगा कोप्लेनार, अग्रीड? मैं इसको बोलूंगा कोप्लेनार, 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 ऑल आर इन द सेम, ये सारे एक ही प्लेन में है, मेरे स्क्रीन के प्लेन में है, मेरे स्क्रीन के प्लेन में है। आर दे पैरेलल? आर दे पैरेलल? आर दे पैरेलल? ना, नॉन पैरेलल, नॉन कोलिनियर। क्या सारे एक ही लाइन से पास हुए? आर दे पासिंग? इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसा है, इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, लाइन ऑफ एक्शन इज आल्सो नॉट सेम, सो दे आर नॉन कोलिनियर। आर दे मीटिंग एट ए पॉइंट? आर दे मीटिंग एट ए पॉइंट? नो सर। हाँ, टू मे बी मीटिंग बट ऑल आर नॉट मीटिंग। कॉन्करेंट के लिए ऑल फोर्सेस शुड मीट। ये मत बोला सर दो फोर्सेस मिल रहे हैं, सर ये फोर्स ऐसा जा रहा है और ये फोर्स ऐसा जा रहा है, क्या मैं इस फोर्स को इधर इधर से ला सकता हूं? यस, किस प्रिंसिपल से इधर ला सकता हूं? कैन आई स्लाइड दिस? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो स्लाइड कर दिया तो यहां मीट हो रहा है, बट आर दिस कॉन्करेंट? नो। आर ऑल मीटिंग एट द सेम पॉइंट? क्या सारे एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं? नो। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लाइन एग्जांपल। देखो यही पे है, एक बीम है, ऑन द बीम वी हैव डिफरेंट फोर्सेस। इज इट ओके? इज इट ओके सर? यहां तक सभी को समझना है? सो इज द फोर्स सिस्टम, कोप्लेनार फोर्स सिस्टम क्लियर? ऑल फोर वी हैव सीन। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम बैक। जस्ट गिव मी 1 मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम बैक। हाँ या, लेकिन शॉपिंग ट्रॉली का क्या है ना, दे आर इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स। नाउ विल गो फॉर 3D, विल गो फॉर 3D, लेकिन नाउ आई हैव जस्ट मेंशनड सिस्टम बट आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट इक्विलिब्रियम। डिड आई टॉक से एनीथिंग अबाउट इक्विलिब्रियम? डिड आई से? सो टॉपिक क्या है? सिस्टम ऑफ फोर्सेस, different forces, force system we have discussed, but we have not talked about equilibrium. When I talk about equilibrium, then I'll be talking for पहले मूवमेंट का डेफिनेशन देके, मूवमेंट के बारे में पढ़ने के बाद then we'll move to this. चलो लिमिट, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, नॉन कॉन्करेंट, यस यस यस। अब देखो, नाउ विल गो फॉर नॉन कोप्लेनार force system. So is it possible, sir, in a plane all line are concurrent? पैरेलल नहीं है तो यस, दे आर नॉट पैरेलल। देखो ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है मिस्टर मनीष, ऐसा नहीं कि लेट अस अज्यूम दैट देयर आर 5 फोर्सेस, 3 forces are meeting at a point and 2 forces are not meeting. It is not concurrent, it is non-concurrent only. For concurrent, all forces which are in a system should meet at a point. Whenever I talk about concurrent, all forces in a system, they should meet at a point. It doesn't mean like 3 are meeting, 2 are not meeting concurrent. No, hope it is clear. अब आप गुप्ता जी मुझे 3D फिगर ड्रॉ करके बता देना, गुप्ता जी 3D ड्रॉ करके बता देना। इट्स नॉट पॉसिबल। सो इफ यू वांट कोलिनियर दे शुड बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन में होना है तो उसको एक ही प्लेन में होना है, सो दे बिकम कोप्लेनार। समझ गए ना? सुनो केयरफुली, लुक एट नॉन कोप्लेनार फोर्स सिस्टम। तो एक तो रूल आउट है, तो हाउ मेनी आर लेफ्ट? सेम व्हाटएवर वी हैव डिस्कस फोर, यहां पे भी 4 आएंगे, लेकिन एक तो रूल्ड आउट है। सो कोलिनियर इज रूल्ड आउट, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोलिनियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोलिनियर। इज इट ओके? थर्ड,
अब देखो सर, नॉन कोप्लेनर पैरेलल, एग्जांपल दीजिए। कब से बात कर रहे थे सर, चेयर 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 चेयर, हमारे क्या बोलते हैं, ललित बाबू ने बोल रहा था चेयर 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 भी ड्रॉ करने नहीं आ रहा है। मैं तो आपको पढ़ाना इतना पागल हो गया मैं। देखो, एक एक दूसरा चौथा। अब देखो प्लीज सुनो सर, सुनो सर, केयरफुली सुनो, केयरफुली सुनो, सुनो सर, हैव अ लुक एट दिस। माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। लेट मी एक्सप्लेन। इधर देखना, इधर देखना, देखो ये और ये दे आर इन सिंगल प्लेन, यस और नो? ये दोनों, ये और ये, इसको ऐसे करूंगा सर, मैं ऐसे करूंगा। एक सेकंड, यहाँ पे दूसरा कलर भी नहीं है ना, छोड़ दो, कोई बात नहीं। कैन आई से दीस टू आर इन सिंगल प्लेन? कैन आई से दीस टू? यस। कैन आई से दिस एंड दिस आर इन सिंगल प्लेन? कैन आई से पीछे के इन सिंगल प्लेन? कैन आई से दिस वन? यस। अगर मैं दो ले रहा हूं, आर ऑल दीस फोर इन सिंगल प्लेन? अरे यार, ये दो एक प्लेन में हो सकते हैं, यस। और ये इस प्लेन में भी है, इस उधर के प्लेन में है। सो इफ यू सी दिस एंड दिस टू, दे आर इन सिंगल, देखो ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में है, और ये दोनों एक प्लेन में है, एक ये और ये, दिस टू, दिस एंड दिस दे आर इन वन प्लेन। समझ आ रहा है? कुछ आइडिया आ रहा है सर आपको? अरे यार बोलो रे, बोलो सर। Is it okay? So these two are in single plane. These two are in single plane. पीछे के दो एक, लेकिन all four are not in same plane. लेकिन ground reaction देखना. Is this falling down? क्या ये नीचे गिरा? नहीं. Who is supporting? These are supporting. So all these are parallel. All these are parallel. All these are parallel. They meet at infinite. So can I call this as non-coplanar parallel system? Can I call it as non-coplanar parallel system? बोलोगे? ये बोलते हैं ऑल आर एक्टिंग इन द सेम प्लेन। अब बताइए, इज दिस इन द सेम प्लेन? अब मैं इसको क्या बोलूं सर? इसको कहां से लाए रे? इसको अभी कितना अच्छा बताया। फ्रंट टू आर इन वन प्लेन, बैक आर इन अदर प्लेन। दिस क्या ये और ये सेम प्लेन में है रे? बोलो सर, मैं इसको क्या बोलूं? यहां पे एक पैर है, यहां पे एक पैर है, यहां पे दो पैर है। इज दिस लेग एंड दिस लेग इन द सेम प्लेन? नो ना, नो ना, पैरेलल हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कॉन्करेंट। व्हाट डज कॉन्करेंट मीन? दे शुड मीट एट द सेम पॉइंट। इधर देखो सर, मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं। व्हेन आई वेंट टू बेंगलुरु, आई सॉ समथिंग लाइक दिस। देखो यहां पे एक पिलर था, कॉलम उसको अटैच किया। अभी बता रहा हूं, देखो एक सेकंड। अब देखना, इसको देखना सब, गोवा के फोटोस आ रहे हैं यहाँ पे। ऐसा कैसा आता जी? इतने सारे भर गए। देखो इधर देखना, प्लीज लुक एट सर, प्लीज लुक एट। एक बार देख लेना ये दिस इज इन, देखो दिस इज इन वन प्लेन, दिस इज इन अदर प्लेन, दिस, बट ऑल आर मीटिंग हियर, ऑल आर मीटिंग हियर। नहीं यार समझे? ऑल आर मीटिंग हियर, यहां मीट कर रहे हैं, यहां मीट कर रहे हैं। ट्राइपॉड, वाह एक्सीलेंट सर, ट्राइपॉड, वाह। इतना दूर जाने का क्यों? ट्राइपॉड, ट्राइपॉड देखो यहां पे, देखो एक बार ट्राइपॉड देखो। सुनो 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 सुनो, ओके एक थोड़ा इधर ले लेंगे, डिस्टर्ब होगा शायद, डिस्टर्ब होगा शायद। ट्राइपॉड को रात में एक सेकंड, शायद डिस्टर्ब होगा फिर। ट्राइपॉड कहां है? देखो दिस इज इन वन प्लेन, ये इधर देखो, इसको निकाल देता हूं। अब देखो, हाँ दिस इज इन वन प्लेन, this is in another plane, this is in other plane, all three are meeting here, all three are meeting here, they are non coplanar concurrent forces। समझ में आया सर? समझ में आया नहीं आया रे? प्लीज बताइए। अरे no one is commenting, no one is commenting, is it clear रे? Is it clear? All three are meeting at one point, all three are meeting at one point। Is it okay sir? Is it okay? Is it okay? Is it okay? Wonderful students of India, wonderful students of India। देखो मेरा मेहनत देख के बच्चे भी ये इधर देखो, look at my dear, ये इस प्लेन में है, ये अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है, but all are meeting somewhere here। So all are meeting somewhere here, इधर they are in different planes, they are in different planes, but still they are meeting at one point। Is it okay sir? बोलो sir, clear okay ना? Okay, समझ गया? समझ, very good। अब क्या है? non coplanar, non concurrent, non parallel। ग्रेट। देखो अब क्या, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली। ये और एक एग्जांपल भी देता हूं। क्रेन से जब लिफ्ट करता है, देखो क्रेन से जब लिफ्ट करता है, वो भी कॉन्करेंट ही है, वो भी कॉन्करेंट है। नाउ विल गो फॉर, हाँ अब देखो सर, लास्ट वन। व्हाट इज द लास्ट वन?
Anyone? What is the last one? Non coplanar, non concurrent, non parallel. एक काम करते हैं, सुनो केयरफुली, लुक एट दिस। यहां पे कुछ विंड पोस्ट, कुछ जो भी है रखा है, इधर से विंड फोर्स एक्ट कर रहा है, यहां से हम एक वायर लेके इधर खींच रहे हैं, समझ गए? अरे यार जो टावर होता है, जो भी टावर्स जो भी है, एक वायर ऐसा खींच रहा है, एक उधर से जा रहा है, दे आर मतलब आपको जनरलाइज्ड है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, दे आर इन डिफरेंट प्लेन्स एंड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। होप यू अंडरस्टूड दिस। होप इट्स समथिंग लाइक, इधर देखो, मैं यही का एग्जांपल बता रहा हूं, इसको एक वायर डाल के मैं ऐसा खींच रहा हूं, ये दूसरे प्लेन में अलग एंगल से और खींच रहा हूं, और देखो इसको ये वेट, यहां का रिएक्शन तो नहीं है, वेट ऐसा आ रहा है, एक बार ऐसा खींच रहा हूं, एक उधर से खींच रहा हूं। वेरी गुड सर। आया नहीं है सर? सो दिस इज अ फोर्स सिस्टम। आप लोगों को फोर्स सिस्टम तो समझ में आया। अब कल से शुरू होगा इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स सिस्टम, और फ्री बॉडी डायग्राम, इक्विलिब्रियम दोनों साथ साथ में चलेंगे। समझ में आया सर? केशव सर, आपको तो सभी समझ में है, बिकॉज यू हैव कम एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द क्लास, सो यू माइट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। केशव बाबू, केशव महाराज, हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? तो अब कल से मैं थोड़ा पूरा 3 आवर्स ले लूंगा सर, 1-2 दिन एडजस्ट हो गया। मजा आ रहा है सर? प्लीज आप मुझे ना अपने कमेंट्स के फॉर्म में भेज दीजिए, सो दैट इट मोटिवेट्स मी। अगर अच्छा लगता है तो ही इस नंबर पे भेज दीजिए, अगर अच्छा लगता है तो ही, नहीं तो छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा है तो नेगेटिव कमेंट्स भी दे देना, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। इज इट ओके? Is it okay? Wonderful. So that's it for today. So tomorrow we are meeting for wonderful. अरे यार टेलीग्राम लिंक है ना, कल दे दूंगा। Which book is best for CSC mains? For I said ना Timoshenko ले लेना। Timoshenko has wonderful questions. Is it okay? So Saturday Sunday off है क्योंकि आपका एग्जाम है ना। Timoshenko ले लेना। लेकिन I have one more book tomorrow I'll give you. Okay? चलो फिर बाय बाय, थैंक यू। चलो आज के लिए बस इतना, थैंक यू। सो कल बहुत इंपॉर्टेंट, शशि नोट्स पूछ रहा है, आज के भी नोट्स बना के कोई ना कोई भेज देना। कल तनुज भेज दिया और 2-3 लोग भेज दिए, बहुत मतलब सुबह जो भेजा बहुत अच्छा भेजा था, लेकिन एक बार मैं चेक करता हूं। सम स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी वेल, सो ठीक है, आप भेज देना, मैं उसका कंसोलिडेट कर दूंगा, ठीक है ना? थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, चलो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।